वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्टे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनपावनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। Okay. So we are in second chapter and Bhagavad Gita, Gita ka Sar. So let's move on from there. So this is based on His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. So इसमें we have 5 sections. Okay, the first section is 2.1 to 2.10, which we have covered, right? So what was that? Arjuna's further doubt and his surrender, right? Then from 2.11, then from 2.11 to 2.30, which is Gyan. So आज जो हम start करने वाले हैं ना, that is basically the knowledge, the Gyan, right? Fight, there is no death for the soul. That's the theme, right? Then 2.31 to 2.38 is Karma Kand, fight, where Lord Krishna tells what is Karma Kand, what is Veda suggest. And 2.39 to 2.54, that is Buddhi Yoga, is Kam Karma. And then 2.54 to 2.72, it is Chit Pragya, which is Chit Pragya. If you notice, ये सारे सेक्शंस में ना एक ही चीज भगवान बोल रहे हैं कि आपको लड़ना है, you have to fight. There is nothing that you can avoid, right? So currently we are in this section, section B. So if you see section B is basically having again 4 subsections. One is 11 to 13, that's a combination. Then 16 to 26 जहाँ पे बोला है कि death is eternal and soul changing from one body to another. यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हम लोग क्या हैं, who are we, and how we are moving from one place to another again and again, right? Then 14 to 15 में भगवान बताते हैं कि performance of the duty must not be affected by happiness or distress arising from sense perception. That is what he tells in 14-15. Then 26 में बताते हैं atheistic and materialistic theory, and 27 to 30 में बताते हैं the eternal indestructible immutable soul cannot be killed, temporary body cannot be saved, therefore fight. Right? So again and again भगवान एक ही चीज बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको फाइट करना है, right? अगर किसी को लगता है कि हम साधु बन जाते हैं, right? Then there is some problem. हमें साधु बन के जंगल नहीं जाना है, हमें अपना काम करना है. We have to fight the duties for the duties we have been assigned for, right? Whatever our prescribed duty is. So if you see इस पूरे सेक्शन में जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने ज्ञान दिया. ज्ञान क्यों दिया, ज्ञान क्यों चाहिए भाई? हमें जब पता है कि भगवान का नाम लेना सब कुछ है तो हम ये ज्ञान में के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? Why are we getting this ज्ञान? मैंने बोला है ना पेशेंस में, the only thing is हरि नाम. If you take Lord's name, that's enough. But then why are we reading Bhagavad Gita then? Purpose पता होना चाहिए. Until we have the knowledge, we will not value what we are doing. So anything and everything जो आप सीखते हो ना, तो पहले आपको ज्ञान चाहिए होता है.
why it is there, what it is there, then only you appreciate the knowledge of that. तभी आप उसको समझते हो, उसके साथ में आगे बढ़ते हो, right? That is why Bhagwan first gave you the ज्ञान. So recap quickly. Arjuna has how many doubts? 5 doubts. Shloka number 127 to 128, compassion. First chapter 31 shloka to 35, he was thinking about enjoyment. 37 to 43, he was thinking about what? कि कुल का नाश हो जाएगा. And then श्लोक नंबर 44 to 45, 44 से 45 तक हमने क्या सीखा कि sinfulness, saintliness and fear of sinful reactions होते हैं. And then 2.6 में हमने देखा indecision. ये पांचों हमने देखे कि अर्जुन के डाउट्स थे. अब इस चैप्टर में भगवान सारे डाउट्स को एक एक करके ब्रेक करते हैं. तो जो श्लोका नंबर 11 है जो हम आज स्टार्ट करेंगे, उसमें 11 से लेके 30 तक सबसे पहला डाउट किल होता है और एड्रेस होता है, जैसे कि आप समझो. एंड दैट डाउट इज कंपैशन, कि मेरे तो अपने लोग हैं, अगर मैं न मारूंगा तो क्या होगा. तो भगवान ये समझाते हैं कि रियल कंपैशन क्या है, व्हाट इज द रियल कंपैशन फॉर एनीबॉडी, राइट. सो लास्ट क्लास में हमने एक श्लोक किया था, किसी को याद है कौन सा था? विच श्लोक नंबर वी हैव डन? 2.10, 10, right. So we can quickly repeat that, and you can repeat after me. Tam uvacha Rishikesh rahassan iva bharata senayor uvayor madhye visidantam idam uvach. तो क्या बताया था संजय ने? संजय ने बताया था कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे. क्या कहे? दैट वी विल सी टुडे. ओके, परफेक्ट. ओके, सो अभी जो कृष्ण है, ही हैज बिकम, ही वाज ए फ्रेंड ऑफ अर्जुन. अर्जुन के मित्र थे, लेकिन अब वो क्या बन गए हैं? गुरु, राइट. चूंकि कृष्ण गुरु बन गए हैं, तो ही वाज स्माइलिंग, राइट. और जो ये भगवत गीता है ना, इट वाज बीइंग डिस्कस्ड बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, बट हु वर देयर टू हियर? Sanjay and Ras, and even both armies also they were able to hear, right. कई बार हमारे साथ भी होता है कि जब आपका फोकस नहीं होता ना किसी चीज पे, तो अगर आपके बाजू में भी कोई बात कर रहा है ना, even if they are talking and you are able to hear by mechanical capacity or bodily capacity, you wouldn't be able to retain it or focus. बट अगर आपका फोकस है ना, तो आप छोटे से छोटी चीज को जो बहुत दूर पे भी बोली जा रही है पकड़ लोगे, राइट. तो यहाँ पे बोली सबके लिए गई थी भगवत गीता, बट ओनली फ्यू वेर एबल टू ग्रास्प इट. ओके, परफेक्ट. सो लेट्स मूव, वी हैव डिस्कस दिस. सो अभी जो सेक्शन है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपको क्विकली ब्रीफ दे दूं. यहाँ पे सेक्शन वर्स नंबर 2.11 के बाद जब 1-2 आएगा, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि इंडिविजुअलिटी इज नेवर लॉस्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, वी विल सी, राइट. एंड अर्जुना फिर इसके बाद इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं होती है, देयरफॉर किसी मरे हुए आदमी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो पॉइंट टू लेमेंट, राइट. देन आगे भगवान 2.13 में बोलते हैं कि चेंज, अर्जुना बोलते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन बॉडी चेंज होती है तो लेमेंटेशन होता है ना. सो भगवान आगे बताते हैं कि देखो, बॉडी चेंज जो होती है ना, ये एक्सपेक्टेड है. सबकी बॉडी जो चेंज होती है, इट इज एक्सपेक्टेड. हम भी पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए. हम चाहते भी तो हम बच्चे नहीं रह सकते थे. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज गोइंग टू फाइंड टू हैपन. सो हो रहा है, व्हाई टू लिमिट समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, व्हाई टू वरी अबाउट इट, राइट. देन अर्जुना में आर्ग्यू कि बट वी डू नॉट लेमेंट, बट वी डू लेमेंट फॉर द लॉस ऑफ यूथ टू ओल्ड एज. जब लोग भूल जाते हैं तो कई बार हमें लगता है ना, अरे बच्चे ही अच्छे थे. हम यंग है तो कभी कभी लगता है बच्चे अच्छे थे. इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद लगता है नॉट एबल टू हैंडल दिस, छोटे अच्छे थे. जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे, तो हमें लगेगा अरे हम यूथ ही अच्छे थे, थोड़ा पावर था, थोड़ा ही सुनते थे, राइट. सो दैट लेमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू स्टे, राइट. कृष्ण उसको भी रिफ्यूट करते हैं. फिर अर्जुना में थिंक दैट बट अटैचमेंट टू करंट बॉडी ऑफ रिलेटिव इज कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर लूजिंग देम. मर जाएंगे तो छूट जाएंगे, उनका क्या?
हमें भी लगता है ना, हमारी फैमिली मेंबर्स अगर उनको कुछ हो गया तो व्हाट विल हैपन टू अस, हाउ वी विल बी एबल टू लिव, राइट? सो दैट विल बी एड्रेस्ड इन 2.14. Then Krishna established the vision of seek of truth and rebukes Arjuna. What is soul? Soul is eternal, right? Then Arjuna argue करता है कि वो सब ठीक है लेकिन violence उससे तो पाप होगा. But Krishna says, if you do a violence under my direction, that is accepted. That will not cause any sinful reaction. Then Arjuna argues कि भीम and द्रोणा की present body तो चली जाएगी, राइट? तो उनका एंजॉयमेंट का क्या होगा? चलो ठीक है, मेरा कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बट उनको भी तो कष्ट होगा, दे विल आल्सो बी इन प्रॉब्लम. देन इन श्लोक नंबर 2.22 भगवान उसको भी रिफ्यूट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट? सो इस तरह से पूरे सेक्शंस को अगर देखो 2.10 से 11 से लेकर 2.30 तक भगवान एक ही डाउट क्लियर करते हैं कि कंपैशन क्या है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन व्हिच इज 2.11 and can repeat now. Sri Bhagavan Vacha Ashochananusocastvam Pragyavadamscha bhasase Gatasun agatasumscha Nanusochanti panditah. Everybody should repeat, okay? Shri Bhagavan Uvacha Ashochananusocastvam Pragyavadamscha bhasase Gatasun agatasumscha Nanusochanti panditah. Shri Bhagavan Uvacha Ashochananusocastvam Pragyavadamscha bhasase Gatasum agatasumscha Nanusochanti panditah. Prabhujis? Any Prabhujis? Please try. I'm here if you are not able to. Just please try. Sri Bhagavan Uvacha Ashochayan Anusocastvam Pragyavadamscha Pragyavadamscha bhasase Gatasum agatasumscha Sushmam Nanusochanti panditah. Nanusochanti panditaha. Online people, can you please mute? If you are in the class, then only you can read. Otherwise, please keep mute. Mataji's. Shri Bhagavan Uvacha Ashochayan Anusocastvam Pragyavadamscha bhasase Gatasum agatasumscha Nanusochanti panditah. Okay, thank you, Mataji. So Sri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead says, Ashochayan, that is not worthy of lamentation, जो शोक करने के योग्य नहीं है. Anusocastvam, you are lamenting, शोक कर रहे हो. तुम प्रज्ञावादांश, learned talks, बुद्धिमान की तरह बात करना, पंडितों की तरह बात करना. Cha, also, bhasase, speak. Gata, lost. Asun, life. Agata, not past, purani life. Asun, life. Cha, also. Na, never. Anusochanti, शोक करना, lament करना. Pandita, the learned. Right? So, translation, the blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead.
श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। राइट? जो विद्वान होते हैं ना तो वो जीवित के लिए शोक करते हैं ना ही वो मृत के लिए शोक करते हैं। क्लियर है सबको? तो फिर किसी के मरने पर नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, फिर क्यों आता है रोना? ये तो आप सीख गए हैं, हम लोग समझे कितना है। ओके चलो लेट्स सी purport. So purport by Srila Prabhupada की so Lord once took the position of teacher and chastised the student and calling him indirectly a fool. अभी यहाँ पे डांट लगा रहे हैं, पहला श्लोक है डांट लगाने से, राइट? और डांट लगा रहे हैं कि तुम इतने विद्वानों जैसी बात करते हो और तुम रो रहे हो, जैसे आपका बच्चा है और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, इसके बाद बोले कि मेरी पेंसिल टूट गई थी इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर आप बोलोगे इतनी सी छोटी चीज के लिए रो रहे हो तुम, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। तो यहाँ पे अर्जुन को भी डांट पड़ रही है, और डांट क्यों पड़ रही है वो आगे आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम बुद्धिमानों की तरह बात करते हो बट यू डू नॉट नो हु इज लर्निंग। तुम बुद्धिमान कौन हो, विद्वान कौन हो ये नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुम बातें वैसी कर रहे हो, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो लेकिन बातें कर रहे हो। One who knows what is body and what is soul does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. ना तो वो जीवित आदमी के लिए रोता है ना वो मृत के लिए रोता है, जो जो ये समझता है कि बॉडी क्या है और सोल क्या है, राइट? सो आपकी जो भगवत गीता है ना, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो रही है अभी, और इस पूरे चैप्टर में भगवत गीता भगवान ने पूरी बता दी है। बिलीव मी, अगर आपने सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना और समझ लिया तो आपको थर्ड से लेके 18 चैप्टर तक पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आपको थर्ड से लेके, जिसमें अर्जुन को और आगे डाउट्स आएंगे और उसकी वजह से वो आगे की भगवान भगवत गीता बताएंगे, राइट? सो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इफ यू आर ए ग्रेट स्कॉलर देन यू शुड नॉट बी लिमेंटिंग। यानी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को वो डांट रहे हैं, ही इज स्कोल्डिंग, राइट? जैसे स्कोल्डिंग होते हैं, इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ ए गुरु टू स्कोल्ड ए डिसाइपल। लॉर्ड कृष्णा इज एक्टिंग एज ए गुरु एंड ही इज स्कोल्डिंग whom? Arjuna. Why? And a real student will be, when he is getting scolded, he will not get angry. He will try to understand why it is happening, what he is trying to make me understand. Right? Normal life में क्या होता है, कोई आपको स्कोल्ड करता है, you retaliate, आप तुरंत उसका जवाब देते हो। और अगर कोई बहुत सिचुएशन फेमिलियर सी है तो आप अपने पास पॉइंट्स भी रखते हो कि अभी मुझे ये बोला तो मैं 4 बात ये वाली बोलूंगा, मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, रहता है ना हमारे दिमाग में। अभी तुम बोलो मेरे पत्ते खुले हुए हैं, छिपा के रखे हैं मैंने, दैट इज द वे वी रिटेलिएट। बट जब एक गुरु और शिष्य का संवाद होता है ना, तो वहां पे शिष्य को अगर डांट भी पड़ रही है ना फॉर सम रीजन और अदर, ही ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द स्कोल्डिंग्स rather than retaliating or getting angry, because that is for his betterment. That is the nature of a student, that is the role of a disciple, right? So when he is getting scolded also, he will take pain of tolerating that scolding and try to understand the truth कि पीछे क्या बात बोली जा रही है ना? इवन जब आप देखोगे कि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, चैतन्य महाप्रभु, भगवान राम, कृष्ण, सब ने अपने गुरु बनाए and they all tried to learn from them, right? And they were not ignorant disciples, they were very serious disciples, right? So यहाँ पे क्या बोलते हैं, as it will be explained in the later chapter that it is clear knowledge means to know matter and spirit in the and the controller of both. ये मैटर क्या है, ये स्पिरिट क्या है, और इन दोनों चीज को कंट्रोल कौन करता है और कैसे करता है, ये समझना में जरूरी है। So Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology. तो यहाँ पे दो चीज आएगी, एक आएगा धर्मशास्त्र, एक आएगा ज्ञान शास्त्र। धर्मशास्त्र क्या बोलता है कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, दैट इज द राइट धर्म, you should obey your elders always. लेकिन ज्ञान शास्त्र क्या बोलता है, have the right knowledge, and once you have the right knowledge then only you will be able to fight, and that is why God is giving the right knowledge, right? And because he was lacking in that knowledge, he should not be posed himself as a very learned man, right? So अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई, if anybody is having a situation, मान लो किसी का कोई बहुत बड़ा, किसी को पेन हो गया एक्सीडेंट से, या किसी का कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई है,
तो हमें रोना आता है, राइट? तो भाई रोना आता है तो रो लेते हैं, क्योंकि हम सबने रो के देखा है और वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर उस टाइम रोने नहीं दिया जाए तो और बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। अगर आपके घर में कुछ हो जाए और कोई आदमी आए बहुत क्लोज है, वो रोए ना, तो आपको लगेगा यार इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको मजा आ रहा है, ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, दुख तो सारा मुझे है, ये मेरे अपने थे, है ना, ऐसा लगेगा ना। सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डज ए वाइज मैन शुड लेमेंट और नॉट लेमेंट? और चलो ये तो बात समझ में आती है कि कोई मर गया तो रोना आता है। कई बार लोग जिंदा आदमियों के लिए भी रोते हैं, देखा है आपने कभी? अपने आसपास देखा है कि लोग जिंदा हैं तो उसके लिए भी परेशान हैं, बहुत उदास हैं, रो भी रहे हैं, अरे वो मेरा रिलेटिव है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, दे स्टार्ट क्राइंग। वी हैव सीन दैट, राइट? भगवान कह रहे हैं कि किसी के लिए मत रो, फॉरगेट अबाउट डेड पर्सन, नॉट इवन अलाइव आल्सो। अलाइव के लिए क्यों नहीं बताओ? डेड के लिए तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अलाइव के लिए क्यों ना रोए? और क्यों रोए? Why does a man not lament for a living? Any guesses? क्योंकि विकास करने से कोई फायदा नहीं है ना। It is not going to impact the other person. It will not decrease the pain of the other person. So हमारे रोने से कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। Okay. Anybody else? We need to understand that whatever happening with this person, this is because of his previous karma. जो हो रहा है प्रीवियस कर्मा से हो रहा है। मेरा बच्चा मैथ्स के सब्जेक्ट में फेल हो गया, उससे कर्म थे वो फेल हो गया, अभी क्या करूं? सिचुएशन क्या है? आप बोल रहे हो कि वो लिविंग है, वो अपने आप देख लेगा, मैं क्यों रोऊं उसके लिए? नहीं, whatever you can do, you do something for to relieve this pain. और रोने से तो कुछ भी नहीं होता। मतलब आप जो कर सकते हो कर दो, लेकिन रोने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वी आर थिंकिंग एट बॉडी लेवल, इसलिए हमें पेन हो रहा है, हम रो रहे हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ओके। क्योंकि उसको पता है कि सोल जो है ना, सोल इटर्नल है और हम सब सोल हैं, और हमारी जो बॉडी है ना, हमें लिमिट नहीं करना चाहिए बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी ना पेरिशेबल है, आज नहीं तो कल चली ही जाएगी। दिस बॉडी इज वेरी मच पेरिशेबल। आपको पता है कि साइंस बोलता है कि एवरी 7 years में आपकी जो भी बॉडी की सेल है ना, सेल से बनती है ना बॉडी, द लोएस्ट यूनिट दैट यू नो इज सेल, वो चेंज हो जाती है, इट चेंजेस, राइट? एंड एक्चुअली शास्त्र बोलते हैं कि एवरी सेकंड द बॉडी इज चेंजिंग। एक्चुअली इट इज ट्रू। आप जब इस क्लास में आए थे सुबह 10:30 बजे, और जब 12 बजे इस क्लास से जाओगे या 1 बजे जाओगे प्रसाद लेके, तब आप एक्चुअली चेंज हो चुके होगे। एग्री? मटेरियल लेवल की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मटेरियल में हम चेंज हो गए होंगे, कुछ ना कुछ सेल्स हमारी चेंज हो चुकी है बॉडी में, राइट? इसका मतलब एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड वी आर चेंजिंग। Are we changing? No, our soul is not changing, but what is changing? Body is changing. That is a fact, scientific fact. That is a scientific fact. There is no logic that can, refute this. So every second, every moment, our body is changing, and something that is changing, you cannot control. Should you lament for it? No, we cannot lament for it. Or even if you lament, आप शोक मनाओगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी हर सेकंड में बॉडी चेंज हो रही है, आप मानो या ना मानो, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम वो इतनी स्लो चेंज हो रही है कि हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन चौथे चैप्टर में आएगा ना, जब हम चौथे चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में आप समझोगे कि बॉडी किस रेट से चेंज हो रही है। अभी हमें समझ में आ रहा है बहुत कम चेंज हो रही है। सुबह आपने नहा धो के जब बाल खींचे तो आपको फेस जो दिख रहा था मिरर में, अभी 1-2 घंटे बाद भी वैसे ही कुछ दिखेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, जो 5 साल की आपकी फोटो थी और आपकी जो फोटो है, कितना चेंज है। इट मींस आप एक्सेप्ट करते हो लॉजिकली कि हमारा बॉडी चेंज हो चुका है, और आप ये भी एक्सेप्ट करोगे कि बॉडी धीरे धीरे करके इम्पेरिशेबल हो जाएगी, राइट? मानते हैं ना सब लोग, राइट? सो जैसे हम मिट्टी के लिए रोते नहीं है, स्टोन के लिए रोते नहीं है, तो क्योंकि वो भी चेंज नहीं हो, वो भी हमारे मतलब वेस्ट है, तो इसी तरह से बॉडी भी एक तरह से वैसी है। व्हाई शुड ए पर्सन लिमेंट फॉर ए बॉडी? अगर आप सही से किसी से कंपैशन करते हो ना, तो उसकी स्थिति पर रोगे नहीं, उसे समझाओगे कि समझो कि पहले तुम हो कौन,
कोई रो रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, कोई रो रहा है कि मुझे इतना पेन है बॉडी में, कोई रो रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, राइट? तो आप उसे समझाने की कोशिश करोगे भाई पहले रोना बंद करो और समझो तुम हो कौन, है ना? दैट इज द रियल कंपैशन। रियल कंपैशन इज नॉट कि आपने किसी को खाना खिला दिया एक टाइम तो अगले टाइम क्या मिलेगा पता नहीं। रियल कंपैशन इज दैट कि प्रसाद खिलाओ और उसको ये समझाने की कोशिश करो कि हु आर यू, व्हाट इज योर ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड, एंड देयर इज नो पॉइंट इन लिमेंटिंग फॉर थिंग्स, राइट? सो अगर कोई रियली में बुद्धिमान है ना तो वह समझेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल। बॉडी को हिंदी में बोलते हैं देह, सॉरी हाँ बॉडी को बोलते हैं देह, एंड सोल इज देही, देह एंड देही। तो जो हमारी बॉडी एंड सोल है ना ये दोनों अलग अलग है, लेकिन वो सोल के ऊपर एक कवरिंग है। जैसे अगर आप कोई फ्रूट लेते हो ना, जब फ्रूट को पील करते हो तो अंदर सीड निकलता है, बीज निकलता है ना, बीज क्या फ्रूट में मिल जाता है? नहीं, आप उसको अलग कर देते हो, फ्रूट को खा लेते हो, ऐसे करते हो ना। एक्चुअली वो बाहर से कैसा दिखता है? एक, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है? अलग है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी सोल भी ऐसी है। इट इज कवर्ड बिकॉज ऑफ दिस बॉडी विच वी आर नॉट एबल टू परसीव और अंडरस्टैंड। तो हमें लगता है यही बॉडी हम हैं, हम ये बॉडी है नहीं। हमें बहुत छोटा सा स्पिरिचुअल स्पार्क है which has got this covering of body. That is what we have to understand. That is what Bhagwan is telling, right? So जो रियल नॉलेज है ना, द ट्रू शाइन इज द ट्रू नॉलेज। जो सही ज्ञान है ना वो ये समझना है कि ये बॉडी क्या है और ये सोल क्या है। ये BA MA की डिग्री, राइट, या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, बहुत सारे ऐसे कर लेना, PhD कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। दुनियादारी समझ लेना, बहुत सारे पैसे कमा लेना, ये ज्ञान का सूचक नहीं है। असली ज्ञान ये है कि ये समझें कि बॉडी क्या है और सोल क्या है। भगवत गीता का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। भगवान अभी 700 श्लोक बाकी हैं, लेकिन भगवान ने पहले श्लोक में ये फाउंडेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। आप सोल हो। अगर आप सोल के प्लेटफॉर्म पे सोचोगे ना तो आपको अपने आप ही बहुत सारी पेन लाइफ की खत्म होती दिखेगी। कम होती नहीं, सीधे खत्म होती हुई दिख जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम ये भूल जाएंगे। अभी ये क्लास 2 घंटे चलेगी या 4 घंटे चलेगी या 6 घंटे चलेगी, फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी, फिर बच्चे बाहर आ जाएंगे, फिर कुछ तो होगा। वी विल स्टिल आइडेंटिफाई विद आवर बॉडी बिकॉज दैट आइडिया हैज नॉट सिंक्ड इन। हमने जब ये क्लास शुरू की तब हमने फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि हु आर वी, एंड दिस इज द श्लोका दैट इज वेरीफाइंग दिस, कि मरे के लिए शोक नहीं करना है, जीवित के लिए भी शोक नहीं करना है। तो रियल नॉलेज इज व्हाट? रियल नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड कि बॉडी क्या है और सोल क्या है, राइट? और यहाँ पे इसीलिए भगवान कहते हैं, दैट्स व्हाई ही सेज नानु सोचंती पंडितः, यानी बॉडी हैज कम फ्रॉम मड एंड इट विल गो टू मड ओनली, राइट? एग्री विद मी? तो जो बॉडी है वो किन चीजों से बनी है? किन 5 चीजों से बनी है? Anybody remembers? अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई, यानी धरती, जल, अग्नि, इन 5 चीजों सबसे मिलके बनी है, राइट? सो जो 5 चीजों से बनी है, ये 5 चीजों से मिलके बनी है और इन्हीं 5 चीजों में क्या होगा? मिल जाएगी। सो जब हमारी बॉडी जलती है, जब हमारा देहांत होता है, या जिसको जलाया नहीं जाता, दफनाया भी जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अर्थ है वो अर्थ के साथ मिक्स हो जाता है, जो एयर है वो एयर में मिक्स हो जाती है, जो वाटर है दैट पॉइंट गोज टू वाटर एंड सो ऑन। सो बॉडी कम्स फ्रॉम पंच महाभूत एंड इट विल गेट टू द पंच महाभूत। देन व्हाट इज दैट गोज आउट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? सोल। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो और जिसको ये सोल की इटर्निटी के बारे में पता है, उसको पता है कि भाई सोल नहीं मरने वाली, इस बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाएगी, दैट पर्सन बिकम्स ऑलवेज हैप्पी। भगवान भगवत गीता में एक जगह बोलेंगे 18 चैप्टर में जाके 54th वर्ष में, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। जो समझता है कि हम सोल हैं, ना तो उसको ज्यादा सोचना, उसको हर कोई प्रॉब्लम नहीं होते। सर्व समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सो भगवान बताएंगे कि हाउ यू गेट हैप्पीनेस आल्सो, राइट? सो one who is transcendently situated at the platform of Brahman, he understands what's the real knowledge and then he will be happy, right? So ये हमें समझना पड़ेगा।
हम लोग क्या बोलते हैं शुरू में कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बोलते हैं ना, हरे कृष्णा चैंट करने से हैप्पीनेस आएगी, आती है ना आपको थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस, भले ही वो उसी टाइम आती है जिस टाइम आप कर रहे होते हो, फिर कभी कभी वो चैंटिंग में भी भूल जाते हो, फिर वापस आते हो, ऑल दैट हैपेंस. Anybody in this class who is not chanting on a daily basis, on daily basis. So everybody is chanting daily, I can assume. Okay, at least one round. Perfect. क्योंकि 2.11 के बाद ना अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे ना, आप ट्रस्ट करो आपको नहीं समझेगा, ये भगवत गीता नहीं समझ आने वाली, तो चैंटिंग तो करना ही है, राइट. और जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ा रहे हैं ना, आपकी चैंटिंग भी बढ़नी चाहिए. इनफैक्ट आप जल्दी भी जा सकते हो, हमें जल्दी से जल्दी 16 माला पे पहुंचना है, पर डे 16 राउंड्स करने हैं. तो अभी आप जितना कर रहे हो उससे कैसे आगे बढ़ोगे सोचो. आप वीकली वंस पढ़ाओगे, एकादशी में पढ़ाओगे, मंथली वंस पढ़ाओगे, क्वार्टरली पढ़ाओगे, आपके ऊपर है, बट यू हैव टू गो फॉरवर्ड, राइट. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो हमको ये जो एक बॉडीली कंसेप्शन से बाहर आना पड़ेगा. बॉडीली कंसेप्शंस क्या है? आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल, आई एम ए फादर, आई एम ए सन, आई एम ए डॉटर, आई एम ए इंडियन, आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, राइट. ऑल दीज आर उपाधि. इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर कॉल्ड फूल्स पैराडाइज. अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद इज फूल पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज समझते हो क्या होता है? क्या होता है फूल्स पैराडाइज? फूल मतलब मूर्ख, पैराडाइज मतलब स्वर्ग. फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खों का स्वर्ग. दैट इज व्हाट वी ऑल आर इन, एटलीस्ट आई एम देयर. ओके, सो उस वो क्या होता है जहां पे हम समझते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, बट एक्चुअली में कुछ है ही नहीं ऐसा. देयर इज नो रियलिटी अराउंड इट, राइट. सो जैसे कि एक फूल होता है, वो एक बेवकूफ आदमी होता है, वो वी कैन से कंप्लीटली कि मैं छत्रपति शिवाजी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, वी कैन से एनीथिंग टू इट, बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो वी आर आल्सो क्रिएटिंग a paradise around us in which we think we will be happy. इस घर को बनाऊंगा, इतने करोड़ का बनेगा, ये वाली कार लूंगा, इतने पैसे जोड़ूंगा, रिटायरमेंट के लिए हो जाएगा, इतना ईएमआई पेंशन मिल जाएगा, एंड वी विल बी हैप्पी. दिस इज ऑल फूल्स पैराडाइज. दिस इज ऑल फूल्स पैराडाइज. क्योंकि इससे कुछ होने वाला है नहीं. आप जितना भी जोड़ लोगे, आप एक चवन्नी भी लेके नहीं जा सकते यहाँ से. फिर क्यों इतना भर भर के करना? करो, आपकी ड्यूटी है तो करो, लेकिन ये सोच के नहीं कि आई विल कंज्यूम दिस, बिकॉज यू वुडंट बी एबल टू डू इट एट ऑल. एक फिलोसोफर, एक बहुत सारे फिलोसोफर है, उसने तो यहाँ तक निकाल के बताया कैलकुलेशन से कि एक आदमी आज की डेट में पहले भी अपने जीवन का कमाया हुआ 10% से ज्यादा पैसा यूज नहीं कर पाता है अपने ऊपर, तो 90% जाता कहाँ है? सोचना चाहिए, right? That is what is there, right? So, and this is all that we are thinking around us is nothing but which is not, that is called Maya, right? So I am thinking that I am this body is actually a Maya, but who are we? We are Atma, and Atma is Satchidananda, Sat, Chit and Ananda, right? These are the three characteristics we have discussed, right? So further, Lord Krishna will explain that what is soul and what is its relationship with God. So let's see some purpose. So Prabhupada बोलते हैं, as he did not mention to be very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as soul. Soul is very important. One who knows that this is actually learned, and him for there is no cost of lamentation regardless of the condition of material body. Right? That is what Prabhupada said. So the question comes, who is learned? The person who understands the difference between the soul and the body, the living and the dead. Right? Now, what is the definition of a knowledge? Knowledge, the definition of the knowledge is to know matter, soul and the supreme controller of both. So अभी आगे धीरे धीरे हम सीखेंगे कि सोल क्या है एक्चुअली, और डीप में जाएंगे कि सोल को समझने की कोशिश करेंगे. क्योंकि जब मैं सोल सोल बोलता हूँ ना, तो आप बस सुन लेते हो, आपको समझता नहीं कि अंदर क्या, कैसा सोल, कौन सा सोल, what is the details of it. But at least for now, theoretically, you know that there is something inside us which is a spiritual spark, and that is nothing but soul. Right? Okay, perfect. So let's go to next verse. Any questions till this point? Okay. Body includes one. Yes, that will come, Prabhuji.
that will come. Man, buddhi, ahankar will come. So this body is comprised in 3 layers. One is called sthul sarir, gross body, which is made of panchabhuta. Then second is called, next level is Sushma Sharir, subtle body. Man, Buddhi, Ahankar comes there. And the third level is soul. Okay. So on the soul there is a covering of subtle body, Man, Buddhi, Ahankar. And on Man, Buddhi, Ahankar there is a covering of this whole body. And on this whole body we are covering this clothes. When the soul leaves to other body, the inside one also goes. So when soul leaves one body to other body, he sits in the chariot of a subtle body. Subtle body में बैठ के soul एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है. इसीलिए कुछ इंप्रेशन उसको पिछले जन्म के भी रहते हैं. That is a science in scriptures. So that is called jiva also. Jiva, okay. Soul itself is called jiva. Good question. Soul is nothing but a jiva. But हमें क्या लगता है? This body is a jiva. No, this body is a dead body. It is anyway dead. And it can be proven also. अभी आप देखो ना, आपके नेल्स आते हैं ना, आप उनको कट कर देते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती ना. फिंगर को कट करते हो, प्रॉब्लम क्यों होती है? भाई नेल्स को कट करते प्रॉब्लम नहीं होती, फिंगर्स को कट करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? There are few dead parts of the body scientifically, few not. But actually में both are dead. Actually both are dead. अगर आप dead man की finger भी काटोगे तो उसको रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं. तो what is that is paining him when he is alive versus what he is dead? Exactly. अगर आप सोल को नहीं भी मानते, नहीं भी समझते, तो कुछ तो है ना. वो कुछ जो है वो क्या है? राइट? और हम कहते हैं ना हम चेंज हो रहे हैं हर सेकंड. अगर आप इसको नहीं भी मानते तो सोचो कि आपके बाल तो बढ़ रहे हैं ना. आपने सुबह खाना खाया होगा, डाइजेस्ट तो हो रहा है ना, कुछ चेंज बॉडी में चल रहा है. आपके नेल्स तो बड़े हो रहे हैं ना. और अगर हम समझते हैं कि हम कंट्रोलर हैं तो इतनी अपने बॉडी को ही कंट्रोल करके दिखा दो. नहीं होता कंट्रोल. बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर. वी आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी ऑल्सो. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द कंट्रोलर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. राइट? सो दैट इज द रियलिटी. डज इट आंसर फॉर नाउ? परफेक्ट. So text 1.2.12 and you can repeat after me. Natvevaham jatunasam na tvam neme janadhipah na chaiva na bhavishyamah sarve vayam atah param नत्वेवाहं जातुनासं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव न भविष्यामः न चैव नाभिविश्यामः सर्वे वयम् अतः परम् सर्वे मयि मता परम्. Okay, so na means never, tu means but, eva means certainly, nishchiti, aham means man, jatu means become, na means never, asam existing, na it is not so, tvam yourself, na not, ime all these, janadhipa बोला जा रहा है जो सामने राजा खड़े हैं, kings, janadhipa. Na means never, cha also, eva certainly, na not like this, bhavishyama in the future, bhavishyama shall exist, sarve मतलब all, vayam मतलब we, atah param hence thereafter. So भगवान बोल रहे हैं कि इस ट्रांसलेशन में कि never was there a time I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future any of us ceases to be. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं, रहा हूं, ना तुम रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे. इसका मतलब क्या है? भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉडी के बारे में, सोल के बारे में? राइट? जैसे अगर कोई बोले कि प्रणव प्रभु बोले कि हम अभी भी हैं और हम पहले भी थे. राइट? या मैं बोलूं सचिन प्रभु पहले भी थे, अब भी हैं, बट डिफरेंट बॉडीज में थे. करेक्ट?
अंकित प्रभु, राइट, ही इज देयर एंड ही विल बी देयर आल्सो, वी आर कंफर्मिंग दैट ही विल बी देयर। भगवान कह रहे हैं कि तुम आज भी हो और कल भी रहोगे, यानी डेथ के बाद भी रहोगे। ही इज कंफर्मिंग दिस पार्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको गौर से पढ़ो, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं इसको, लेट्स सी दिस लाइन अगेन। नेवर वाज a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of Jesus to be. Do you understand this line again? अब इस लाइन को गौर से देखो। अभी मैंने जो पार्ट हाईलाइट किया इसके देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं देखता हूं कि आज भी है और आगे भी रहेंगे, इसका मतलब व्हाट इज दिस टेलिंग? इटरनली रहने वाले, इसी को कहते हैं इनफाइनाइट, सनातन। यानी भगवान अपने पर्पट में बता रहे हैं कि दिस टू लाइन्स सपोर्ट्स व्हाट? इटर्निटी। कि आप पहले भी थे, आप आज भी हो और आप आगे भी रहोगे। यानी भगवान ये कह रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इनके बारे में इतना टेंशन मत लो कि तुम इन्हें मार दोगे। तुम मार ही नहीं सकते ना। यू डू नॉट हैव एनी एलिजिबिलिटी टू किल एनीबॉडी। यू आर लिमिटिंग कि मैं मार दूंगा तो मर जाएंगे, तुम्हारे मारने से थोड़ी मरेंगे। They will not get killed. Their souls. अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर their souls they will not get killed, तो फिर मैं क्यों फालतू में टेंशन लूं? कोई चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो भाई मैं क्यों पीछे पीछे भागूं? पुलिस पकड़ लेगी ना चोर को। अर्जुन कैन आर्ग्यू, राइट? इट्स अ नॉर्मल आर्गुमेंट, करेक्ट है ना? तो भगवान अभी तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि तुम थे नहीं और ऐसा नहीं कि तुम रहोगे नहीं। लोगों को लगता है मेरी उम्र 40-50 साल और बची है, 20 साल और बची है, राइट? हमारे गांव में तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मरने से पहले ना, जब उन्हें लगता है कि शायद हम मरने वाले हैं, तो अपना सारा कुछ लिखा पढ़ी भी बच्चों के नाम पे कर देते हैं, करते हैं ना, वसीयत दे देंगे, विल दे देंगे, पैसा दे देंगे, जमीनें कर देंगे। नहीं, जाने वाले की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। उनको लगता है कि मरने वाले हैं तो ये कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो मरने वाले हैं ही नहीं, फिर करते क्यों हैं? अरे भाई इस बॉडी का छूट जाएगा, अगली बॉडी का फिर देखेंगे। अगर उन्हें इतनी बुद्धि रहेगी कि अगली बॉडी का फिर से रहेगा, तो इतने टेंशन लेंगे ही क्यों? कर्म चुकता करने के लिए इस जन्म में क्या करना पड़ेगा? कर्म चुकता नहीं होते, आप ही भूल जाइए कर्म चुकता होंगे। जब तक वेट करिए माता जी, आप लेट आए, पहले बताया था मैंने। 10 साढ़े 10 आइए। जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो 10:30 नहीं आएंगे, तो मैं क्वेश्चन उनसे रिकॉर्ड पूछूंगा। कर्म नहीं जाते माता जी, यू कैन नॉट। इस जीवन में जो मैथमेटिक्स है ना, वो ऐसे नहीं चलती जैसे हमारे जीवन में चलती है। लेट मी आंसर फर्स्ट, देन यू कैन आंसर। वेलकम। 6 तरह के ऋण होते हैं, आपको याद है कौन कौन से होते हैं? तीसरा माता पिता ऋण, चौथा भाई बहन, नहीं, गलत है, नहीं, माता पिता भी नहीं आते, पितृ ऋण में आ जाता है माता पिता। दो बताया आपने, 4 और हैं। नेचर का और 3 देवताओं का, और गुरु कवर हो गया वहां पे। रिलेटिव्स नहीं, रिलेटिव भी कवर हो। आप लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन चूंकि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जो 6 तरह के ऋण होते हैं ना माता जी, वो 6 तरह के ऋण आप इसी जीवन में चुका सकते हो, चुका सकते हो। हर ऋण का अलग अलग है, मैंने वो भी आपको क्लास में बताया था। आज से 6 क्लास पहले मैंने बताया था, मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, आप सुनिए दोबारा, नहीं तो आज के श्लोक नहीं होंगे। सारे के सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, आप एक्चुअली में कोई भी ऋण चुका नहीं पाते, क्योंकि मरते मरते तक ऋण चढ़ते भी रहते हैं। बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, कहते हैं अरे हम अपने माता पिता का ऋण चुका लेंगे अगर अपने बच्चों को पालेंगे तो। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने माता पिता का ऋण भी चुका नहीं सकते। Because of them you came to this world and you listened to Bhagavad Gita. आप बना लीजिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं। हम नहीं कर पाते ना, ऐसा पॉसिबल नहीं। You cannot control them. So the understanding is there that in eternity you are a soul who are traveling from one place to another. तो क्या हमें घर वालों का केयर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, because that is a prescribed duty given to you. अगर आप वो नहीं करोगे तो आप बड़े कर्म उल्टे कर लोगे अपने। तो अपने कर्म तो हमें करने ही है, जो हमारी ड्यूटी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, राइट? लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम कर्म के मैथमेटिक्स से बच के यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। निकल पाएंगे हम तभी जब हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी पूरी करेंगे और भगवत गीता की टीचिंग्स फॉलो करेंगे। वो क्या है? वो धीरे धीरे सीखेंगे।
तो जितना सीखते जा रहे हैं उतना करते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल एक ही टीचिंग्स है, वो है ABCDE। अगर आप उतना याद रखोगे तो आप बचे रहोगे, बाकी टीचिंग्स चैप्टर में आती रहेगी। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू श्लोक, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये दो फ्रेजेस क्या बता रहे हैं कि वी आर इटर्नल, मींस सोल इज इटर्नल। पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आप लोग सब लोग सतयुग में भी थे, हम लोग द्वापर में भी थे, हम त्रेता में भी थे, पर हम अपने ढीठ है, हम नहीं सुधरे कि हम कलयुग में भी बैठे हुए। ब्रह्म कुमारी बोलते संगम युग चल रहा है, लेकिन इसमें कलयुग चल रहा है। कहाँ लिखा है माता जी? ब्रह्म कुमारी मैंने नहीं माता जी, ये हम किसी दूसरे संस्था का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। बट माय पॉइंट इज दिस, अगर आप ये बोलते हैं वो बोलते हैं, आप प्रूफ लेके आइए, प्रमाण लेके आइए। हम शास्त्रों के बेस पर बात कर रहे हैं, अगर शास्त्रों में लिखा है तो बताइए। मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही मिलता है, लेकिन आपको जो बचपन सीखते हैं कि नहीं, जैसे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार जन्म माता जी, unnecessary theory we will not discuss. If you have a proof, show me in the shastras, we will discuss. That's why we say, इधर इस वाले इंस्टीट्यूशन से उस वाले इंस्टीट्यूशन कौन डिसाइड, आप इंटरनेट से, यूट्यूब से, आप ये सब क्या कोर्स बोलते किया हुआ है ब्रह्म कुमारी। आपने कोर्स किया तो फिर आप घर होके भी आई ब्रह्म कुमारी। माता जी कहाँ लिखा, शास्त्रों में कहाँ लिखा है, व्हाट इज द वही बेसिस? तो मुझे विश्वास नहीं होता ना, तभी तो आप यहाँ बैठे हो ना, इसलिए तो मैं यहाँ इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गुरु बनाया, इसलिए तो मैंने गुरु बनाया। माता जी, all that is fine. First listen. You are arguing more and listening less, and I can definitely tell you that you are not chanting. Yes or no? Because until you are chanting, you will not get purified and you will not be able to digest this knowledge. Example is here in front of you. If you are not chanting, आपको ये digest होगा ही नहीं, आप सारी theories को mix करोगे। हाँ, वही कर रही हूँ। वही हो रहा है आपके साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, please start chanting. Until you chant, you will not understand. Number one. Number two, there are three types of praman. I am repeating some of the few classes. What are three types of praman? Anybody remembers? नहीं, नहीं, शब्द is there. प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, and शब्द प्रमाण. माता जी remember? हरे कृष्ण माता जी. Remember? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, and शब्द प्रमाण. What is प्रत्यक्ष प्रमाण? मैं देखूंगा तो मानूंगा। पूर्व करके मतलब कि प्रूव करके बताना है। नहीं नहीं नहीं, प्रत्यक्ष मतलब आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। आंखों से देखना। हाँ, राइट। अभी चंद्रमा दिख रहा है, अभी दिखतेगा, दिन में चंद्रमा दिखेगा, इसका मतलब चंद्रमा नहीं है, नहीं है ना, है कि नहीं है? तो फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैन गिव यू राइट नॉलेज? नो, इट कैन नॉट गिव राइट नॉलेज, इट कैन नेवर गिव द राइट नॉलेज। अनुमान प्रमाण, व्हाट इज अनुमान प्रमाण? Guessing something. Anuman is to guess. Guess. Can it be a right thing? No. No, it can. There is no premise of that. Shabda praman, something is written in scriptures and told by the guru, that is the right thing. 1 + 1 2 होता है। प्रमाण है मेरे पास बुक के जरिए या उसके उनके बोल। I'm coming to it. I'm coming to it. Shabda praman is what is written, but written by whom? Who is the authority? And what is the lineage? आपको ये बताना पड़ेगा कि lineage क्या है, और वो lineage should be proven by multiple places. That is called परंपरा, right? आप लोग के पास भगवत गीता है ना, एक बार पीछे मुड़ के देखो, इंट्रोडक्शन खोलो उसका, उसमें एक परंपरा दी हुई है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें आफ्टर इंट्रोडक्शन, जहाँ पे चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, उसका ठीक एक पेज पहले बोलिए। फर्स्ट चैप्टर के जस्ट पहले क्या लिखा है? माता जी आपकी बुक कहाँ है? नहीं है, देखिए, आप ये देखिए, सी दिस, व्हाट इज रिटन बेटा? आप कैन यू रीड फॉर मी ऑल द नेम्स? कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, wait a second, just read in this louder. कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वा, पद्मनाभ, निहारी, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, नित्यानंद, अद्वैत, लॉर्ड चैतन्य,
रूपा स्वरूपा सनातना रघुनाथ जीवा कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ बलदेव जगन्नाथ भक्ति विंदोद गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। इसको कहते हैं लीनिएज। भगवान से नीचे तक की जो लीनिएज है दैट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज कॉल्ड परंपरा। तो जो नॉलेज है ना, नॉट ओनली शब्द प्रमाण, ये एक परंपरा में आनी चाहिए। एंड थर्ड, आपको ये जो स्क्रिप्चर्स है ना, ये आपको एक एक चीज एक जगह प्रूफ नहीं करते। ये जो सोल का एग्जिस्टेंस है ना, सारे उपनिषद सारे वेदों में बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपके फिर भी क्वेश्चन है, वी विल टेक आफ्टर सेशन, वी विल टॉक अबाउट इट, क्लैरिफाई। बट पॉइंट इज शब्द प्रमाण शुड बी देयर एंड इट शुड बी प्रूवन। अब आप बोलोगे साइंटिफिकली किसी भी रिसर्च पेपर में कुछ लिख दिया, कुछ भी हो गया, इट इज ट्रू। नो, इट हैज टू बी प्रूवन बाय मल्टीपल प्लेसेस एंड इन लीनिएज। अगर आप कोई बोलते हैं ना, मैं मेरे को पूरी नॉलेज है, मैं गुरु हूं, आप उसको पूछो आपका गुरु कौन है? रात में सो के उठे और सुबह सारा ज्ञान आ गया, ऐसे किसी के साथ नहीं होता है। You have to find a guru, he will teach you, you will learn, and he should also have a guru. A guru should also have a guru, and they should go tell Lord. If it is not happening, then probably he is a fake guru, totally fake guru. There is no proof because he is not having a guru. Anybody, and even a literate person, किसी ने 700 श्लोक याद कर लिए भगवत गीता के, and he tries to be guru, and he says, I do not have a guru. Clearly understand he is a fake guru. He will not be able to be the right man. Because अगर किसी के आप मुंह से सुन रहे हो ना और उसका कोई गुरु नहीं है ना, तो विदाउट गुरु कोई सीख बुक से नहीं सीख सकता, क्योंकि ये तो सबको अवेलेबल है, 200 रुपए की बुक है, कोई भी पढ़ के गुरु बन जाएगा, बैठ जाएगा। नहीं, he should have a guru. A guru should have a guru. That is the way this knowledge can be understood. Otherwise ये knowledge समझ में आएगी नहीं. That's the magic inside this. Even आप देखो ना, आप जितने भी बड़े-बड़े लोगों को देखोगे ना, if you see really a sant, he will only talk about his guru. अभी मैं 6 महीने पहले 8 महीने पहले अयोध्या गया था with my guru नीरज प्रभु जी, and we tried to go to multiple temples in अयोध्या, और बहुत सारे संतों से भी मिले हम। एक संत ऐसे भी थे जो कनक भवन में, जिन्होंने हमें बहुत लंबी कथा भी सुनाई, राइट, और वो रामानंदी संप्रदाय के थे, इस संप्रदाय के नहीं थे। बट जब हमने उनसे कथा सुनी, उन्होंने हम 2 लोगों के लिए कथा सुनाई, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके थे, बहुत दूर से आए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 दिन तक लगातार हम उनके पास गए, 3-4 दिन तक लगातार उन्होंने हमें कथा सुनाई। लेकिन जब भी वो कथा सुनाते थे, पहले 45 मिनट वो अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते थे। And that pattern we could realize after a week when we came back. Hiren Prabhuji told me that. Did you observe that part? I said yes. So if you do not have, somebody does not have a guru, even if that gyan, if he have taken one time, will go away. If he does not have a gratitude for the guru from here he have taken. कई लोग लेते हैं, भैया मेरा पूरा ज्ञान आ गया, भी तो मैं गुरु बन गया, तो तुम कौन, हम कौन, हम आपके हैं कौन वाला सी, right? They forget the guru. He will not be able to retain that knowledge also, and that knowledge will not be useful to that person also. So a guru has to have a guru. That is what Sabda Praman goes for. So coming back, it supports eternality. Eternality means soul is there and soul will be there. Now the beach wala portion hai, what does it mean? When you did not exist nor did I exist, this supports something called individuality. Individuality means कि आप हो और हम हैं, और हम दोनों अलग अलग हैं। आपने सुना होगा ना वर्ड कि हम दोनों भगवान में मिल जाएंगे, मरने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे, हम उसमें मर्ज हो जाएंगे। These all are wrong theory. That is called मायावाद। आज हम मायावाद के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि what is मायावाद, right? So we all are individual and we all are ever existing is an understanding from the Shruta. हम सब अलग अलग हैं, और हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये श्लोक प्रूफ कर देती है। कौन सा श्लोक? नत्वे वाहम जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयम् अतः भरत। Is that part clear? चलो, so let's move. So two things: soul is individual and soul is eternal, right? Now, so this body comes and go, and that's why Lord Krishna is referring to body or soul. So हमारे को पता है कि he is referring to soul, right? Now, in the Katha Upanishad,
also Shweta Upanishad also it is said that Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities. ये चीज भगवान कई जगह बोलते हैं, राइट, कि मैं सबका पालन कर रहा हूँ, लेकिन भाई आपने देखा नहीं, प्रूफ क्या है? अब बोलोगे भगवत गीता में लिखा है, तो बाकी वेद और उपनिषद का भी फर्क है। तभी क्वेश्चन ही आता है कि अगर हम सोल हैं और कृष्ण भी सोल है, हम भी पहले थे और कृष्ण भी पहले थे, तो जैसे हम है वैसे वो हो गए, डिफरेंस कहाँ पे हुआ? नहीं, आपने बोला ना कि भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, अपने लिए भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, कृष्ण अर्जुन के लिए भी बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि ये सारे राजा नहीं थे, थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के लिए बोल रहे हैं, राइट। और ऐसा होगा नहीं कि मैं न रहूं तुम ना रहो या ये ना रहे, सबको कवर कर लिया, तो फिर कृष्णा में हमें डिफरेंस क्या रह गया? सुप्रीम पर्सनालिटी है, लेकिन अभी श्लोक में तो नहीं लग रहा है। आत्मा परमात्मा का डिफरेंस है, राइट, ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि श्वेताश्व उपनिषद और कथा उपनिषद में डिफरेंस क्या है कि गॉड इज द मेंटेनर ऑफ लिविंग एंटिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वर्क एंड रिएक्शन ऑफ वर्क व्हिच ओनली सेंटली पर्सन कैन अंडरस्टैंड। सो अभी समझने वाली बात ये है कि भगवान ने सोल की जब बात की ना, तो उन्होंने सबको एक ही कैटेगरी में ले लिया, अपने आप को भी ले लिया उसी कैटेगरी में, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज लाइक दिस। अंतर क्या है भगवान में और हम में? अंतर ये है, तो एक श्लोक आता है, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है कि नित्यो नित्यानाम, यानी कि एक लिविंग एंटिटी है, देयर आर बहुत सारी लिविंग एंटिटी हैं जो सारी क्या है, इटर्नल है, मैं तुम ये राजा। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, चेतनस चेतनानाम, देयर आर मैनी कॉन्शियस एंटिटीज आल्सो, ये सारे कॉन्शियस भी हैं, सब में चेतना भी है, मुझ में भी, तुम में भी, और ये राजाओं में, सब में, राइट। बट अमंग दैट एको बहुनाम यो विदधाति कामान, लेकिन इन सब में एक एटर्नल एंटिटी है, एक कॉन्शियस बीइंग है जो सुप्रीम है, और बाकी जो हैं वो उनको मेंटेन कर रहे हैं। Who's maintaining? One that supreme entity is maintaining. So नित्यो नित्यानाम, यानी कि एक इटर्नल है और बहुत सारे इटर्नल हैं, यानी एक आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं। फिर एक आत्मा है जिसमें चेतना है, बाकी में भी चेतना है, लेकिन उन सारे में से कोई एक है who is maintaining all the rest, and that who is maintaining, that is God. एको बहुनाम यो विदधाति कामान, that is maintaining all the rest. So we are eternal, God is eternal, यानी हम eternal है, हम सनातन हैं, और भगवान भी सनातन है। हम कॉन्शियस हैं, भगवान भी कॉन्शियस है, we are conscious, God is also conscious। बट डिफरेंस क्या है कि भगवान हमें पाल रहे हैं, God is maintaining us, that is the difference। God is protecting us, God is providing for us, this is the difference, यही अंतर है, राइट। श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो यही बोलता है कि जन्मादस्य जन्मादि अस्य यो अन्वादि इतारस चाति अभिजानात स्वराट, यानी भगवान स्वराट है, that is the level, that is what he is, right। so जो हम है ना, अभी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो we are consciousness directly, right। जैसे कि अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो मुझे मीठा लगेगा, अगर मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं तो मुझे मीठा लगेगा, क्या वो टेस्ट आपको आएगा? नहीं आएगा। You will only experience when you take that activity। या अगर मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा मुझे बुरा लग रहा है? I cannot, you cannot sense। थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग तो स्वाद आता है। मैंने आर्ट ऑफ ये रविशंकर जी का मैंने 10 डेज का कोर्स, उसमें आता है। अगर मेरा पैर टूट गया एक्सीडेंट में, आपको दर्द होगा? लेकिन मैं जामुन का स्वाद आ रहा था, कुछ और खिलाया था, आग बंद करके बोला था कि ये थिंकिंग करो, तो सभी लोगों को जामुन का टेस्ट आ फिर रहा हम खाना क्यों खाते हैं? ऐसा हुआ था। नहीं, एग्री, चलो आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर हम खाना क्यों खाते हैं? इफ यू थिंक that thinking can only give all the energy that we need, why do we eat food?
You should ask these questions there. See, understand what I'm trying to tell you is the reality you can always apply and experience. If you think that you can still get a test of whatever somebody else eats, that you can get, then you do not necessarily need to worry about anything. You can Sorry, think I and am eat. not understanding it. नहीं, आप बताइए, अगर आपको लगता है कि आपको जामुन सोचने से जामुन का टेस्ट आ जाता है, तो फिर खाना खाने की क्या जरूरत है? सोच लो, पेट भर गया, पेट भर जाएगा। नहीं, let's खाना तो खाइए, see, the class is for asking questions. We can logically discuss. दाल चावल खाएंगे तो हमको लग रहा है कढ़ी चावल खाना, दाल चावल के खाएंगे तो हमको कढ़ी चावल का टेस्ट आएगा उसमें, ऐसा मैं माताजी, अगर आपको कोई बीमारी हो गई ना, आप चीनी भी खाओगे ना तो आपको मीठी नहीं लगेगी, ऐसा होता है ना, टेस्ट चला जाता है ना कहीं का। यू हैव एक्सपीरियंस दैट? क्यों होता है फिर ऐसा? आप बात समझने की कोशिश करो, भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली कॉन्शियस हो उन चीजों के लिए जिनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप दूसरे की चीजों का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकते कि मेरी वाइफ को भी क्या पेन हो रहा होगा या प्लेजर हो रहा होगा, या पीछे आपको जो बैठा है वो खुश है या दुखी है, या वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो वी आर ओनली कॉन्शियस लिमिटेडली, बट भगवान को आपके सबके बारे में पता है। माता जी प्लीज, माता जी, लेकिन भगवान को आप सबके बारे में पता है। तो गॉड हैज हैविंग सुप्रीम कॉन्शियसनेस, बट वी हैव ए लिमिटेड कॉन्शियसनेस। आपको मैं स्लाइड का टाइटल देखिए, क्या लिखा है? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, भगवान के पास इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। वो आपके अंदर बैठ के जानते हैं कि अभी आपका क्या स्टेट है। यहाँ तक कि आप सोच क्या रहे हो वो ये भी बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आप क्या सोच रहे हो, आप ये नहीं बता सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। दिस इज ए प्रूफ दैट हमारा कॉन्शियसनेस लिमिटेड है और भगवान का कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है। भगवान को सबने बनाया, भगवान भी तो सबके रूप में। भगवान ने सबको नहीं बनाया, भगवान ने सबको बनाया, लेकिन सबने भगवान को नहीं बनाया। आप सबके रूप में भगवान है। Yes. अंदर अंदर तो भगवान है। Yes. मूर्ति के रूप में बैठे हैं, लेकिन वो सब आप में भी भगवान है, सब भगवान है। हाँ, तो अहम सर्वस्य अहम, हमने देखा ना, सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान खुद कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ। I am in the heart of everyone. Madhuri, we can take all these questions which are related to other theories in the lunch time, because it is we will not be able to. No, that's okay. We'll not be able to complete. So my point is that we are not conscious of many other things. अभी मैं आपको एक चीज और प्रूफ करता हूँ। एक्चुअली में आप अपने बारे में भी फुली कॉन्शियस नहीं हो। आपने खाना खाया, वो खाना कैसे अंदर डाइजेस्ट हो रहा है आपको पता है? नहीं, मैंने रोटी का ये वाला टुकड़ा खाया था तो वो पेट के इस साइड वाले में गया कि यहाँ से जाके उस वाले हाथ को एनर्जी मिलेगी। कैन यू से दैट? यू डोंट नो। सो एक्चुअली में नॉट ओनली लिमिटेड कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना लिमिटेड नहीं है, आपकी चेतना उससे भी कहीं लिमिटेड है। इसीलिए आपको याद नहीं रहता कि आज से 3 वीक पहले रात को 8 बजे आपने क्या खाना खाया था। आज से 10 साल पहले आप कौन से कपड़े पहनते थे। आज से 2 दिन पहले आप कहाँ थे इस टाइम पे, हो सकता है आपको वही याद ना हो, राइट? Because our consciousness is very very limited. That is the difference between one soul and other soul. वही तो बोल रहे हैं ना, नित्यो नित्यानाम, one is eternal, all is eternal. चेतनस चेतनानाम, one is conscious, others are all conscious, right? That एको बहुनाम, विदधयो विदधाति कामा, right? तो आपको दूसरे की कॉन्शियसनेस नहीं पता होती, लेकिन भगवान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकी सारे कॉन्शियस चीजों के बारे में पता होता है। That is the difference between we and God, right? So that is the, so our consciousness is partial and God's consciousness is complete. Yes. So when you say our consciousness, my consciousness, your consciousness, mutual consciousness. Individually we have some consciousness. Now you cannot measure it. You have some limited consciousness about your soul. I have some limited consciousness about my soul and my body. You have a consciousness about your thing and your body, that also very limited. Every soul is different. Yes, every soul is, that's why I said now, every soul is individual and every soul is eternal. ये जो आप जंगल जाओगे, जंगल में पानी बरस रहा होगा, उसके नीचे पेड़ होगा, पेड़ के नीचे गंदगी में बैक्टीरिया होगा ना, उसमें भी एक सोल है, और that is also individual. So that is not affected by No, they will have its own characteristics when the body is given.
but soul is eternal, soul is individual. If one takeaway you want to take today is soul is eternal and soul is individual. And it does not have any characteristics like that. नहीं वो सब है, वो सब आएगा, 60 चैप्टर तक वेट करना पड़ेगा, it will come. But अभी जितना बोला उतना समझा? Did you get what I said? Okay, perfect. Right? So हमारी कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, गॉड की अनलिमिटेड है. एंड 7 चैप्टर के 26 श्लोक में ये आता है. यू कैन सी दैट. इसमें बोलते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि अर्जुना, कि सुनो अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अभी दिख रहा है वो पता है, बट मुझे सब कुछ पता है. भविष्यानि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन, यानी कि मुझे पहले का भी पता है, मुझे आज का भी पता है, मुझे आगे का भी पता है. अगर कोई ये श्लोक पढ़ के भगवत गीता बंद कर दे और बोलते भगवान ने बोला था नत्वे वाहम जातुनाशम नाम तमने में जनाधिपा ना चाहे ना भविष्यमा सर्वे एवं अतापरम, तो आप भी सो लो, मैं भी सो लूं, भगवान भी सो ले, बात खत्म, आप सब एक हैं. नहीं, भगवान ने आगे ये भी कहा है कि देयर इज फर्दर डिफरेंस, कि तुम में मुझे कुछ डिफरेंस भी है. यू आर आल्सो सोल, आई एम आल्सो सोल. राइट? अब आगे देखते हैं. तो दिस एक्चुअली गिव्स सम मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ कांसेप्ट कॉल्ड मायावाद. राइट? तो आप में से किसी ने सुना है मायावाद के बारे में? ये वर्ड सुना है मायावाद? पहले सुना है? इस क्लास के अलावा सुनते मुंह माया छोड़ के जाना, लेकिन जिसको अपन बहुत जा चाहते से मुंह तो लग ही जाता. दैट इज मायावाद. माया उसके पीछे चली जाती ओके, है. एनीबॉडी एल्स? Everything is illusion. Go to Brahman. ओके, नहीं इस क्लास के अलावा पहले कभी आपने मायावाद सुना था? माया सुना. ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आपने ये सुना है कि सब कुछ माया है ना? ऐसा तो सुना होगा ना, एवरीथिंग इज इल्यूजन. ओके, सब मोह माया है, सब छोड़ दो, सब डायलॉग सुना है. ठीक है. आपने ऐसा सुना है कि सारे भगवान एक हैं, किसी की भी पूजा करो, सुना है ना? अच्छा, ठीक है. आपने ऐसा भी सुना होगा कि सारे रास्ते तो एक ही तरफ जाते हैं, सारे किसी की भी पूजा करो पहुंचोगे तो वहीं पे, है ना? ओके. आपने ऐसा भी सुना होगा कि सब कुछ लास्ट में मर्द भगवान में ही हो जाना है, सुना है? ये सब डायलॉग सुने हैं ना? ये सारे मायावादियों की निशानी है, और ये सारे गलत हैं. इन सारों के रेपुटेशन से भगवत गीता में we'll talk about it today because ये क्वेश्चंस पहले भी आए थे. राइट? और आपने ऐसे भी सुना है कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, सुना है ना? ये सब सुना है? हाँ, ये मतलब कहीं ना कहीं सुना है. कौन बोला, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट सुना है ना आपने ही. राइट? सो अभी ये समझते हैं कि मायावाद है क्या. ओके, एंड दिस इज टू डीप रूटेड इन द इंडियंस, स्पेशली इंडियंस. ओके, सो व्हाट इज मायावाद? सो आप ये फोटो किसकी देख रहे हो? आदि शंकराचार्य. सो आदि शंकराचार्य वाज amazing proponent of a philosophy called Advaita. Advaita means there is only one reality. So there is Dvaita means though, Advaita means एक. There is only one reality, right? And a small extension of Advaitavad becomes Mayavad. Mayavad का मतलब ये नहीं कि माया में फंसे हैं, उसका डिफरेंट मीनिंग है. ओके, सो जो शंकराचार्य हैं वो क्या बोलते हैं कि जीवा इज गॉड. We are soul and every soul is a god. They say every soul is a god, but हुआ क्या, फिर हम लोग अगर भगवान है तो इधर क्या कर रहे हैं? But because of influence of Maya, the soul has forgotten that he is God. हम लोगों में माया का प्रभाव हुआ और हम लोग भूल गए कि हम भगवान हैं. This is a theory which is what? Advaitavad. Right? Now, और क्या बोलते हैं वो? So इसके आगे वो बोलते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्, यानी कि जिन्होंने संन्यास का दंड ले लिया वो नारायण हो जाते हैं. मतलब वो बोलते हैं कि अगर आप सब भगवान हो, लेकिन अगर आपने संन्यास ले लिया, ये माया को छोड़ दिया, इस मटेरियल वर्ल्ड को त्याग दिया और आपने संन्यास ले लिया. संन्यास के डंडा भी होता है, देखा ना आपने, संन्यासियों के हाथ में डंडा होता है. तो अगर आपने दंड ग्रहण मात्रेण, अगर आपने वो संन्यास का डंडा और ले लिया और संन्यास ले लिया, तो आप भगवान बन जाते हो. That is what Mayavadi says, right? So we say as soon as, last line, as soon as you acquire sannyas danda, come to the point of knowledge and nar become Narayan. जो नर होता है वो नारायण बन जाता है. अब वो जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण, यानी कि तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, हम दोनों नारायण. That is the Advaita.
ये माया पीछे नहीं छोड़ती, संन्यास मान को जाने नहीं दे रही। नहीं, वो तो अभी आएंगे माता जी, क्या पीछे छोड़ता है क्या नहीं छोड़ता है, अभी तो ये हम समझ रहे हैं कि मायावाद क्या है, राइट। सो ये क्या बोलते हैं कि ब्रह्मन इज द ओनली थिंग। सो ब्रह्मन जो शंकराचार्य ने बताया था और ब्रह्मन जो वेदव्यास ने बताया था, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड बाकी जो फिलॉसफी है, मॉडर्न फिलॉसफी, वो सब देयर आर ऑल ऑफशूट ऑफ दिस, मींस विशिष्ट अद्वैत, अलग अलग जो अद्वैतवाद की बात है, वो इसके और ऑफशूट्स हैं। सो लेट्स कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड इट मोर। सो व्हाट इज मायावाद देन? सो मायावाद क्या करते हैं कि गॉड इज लाइक ए लाइट, भगवान एक लाइट की तरह है, व्हिच इज विदाउट क्वालिटी एंड विदाउट शेप। यानी वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डू नॉट एक्सेप्ट, दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट लॉर्ड हैज ए फॉर्म। वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड इज निराकार, आकार नहीं है लॉर्ड का। Who's saying this? I'm telling you, I'll come, not really. Let it finish. Mayavadi says this. It's a Okay, so Mayavadi philosophy says that, in fact, you will be surprised to hear कि इंडिया में 80% लोग मायावादी हैं। Oh my God. I'll prove you after the by the session ends. Okay, the Lord has no form, he is Nirakar and is a person called Nirvishesh, right? And एक light है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, there is nothing like that, right? So निर्विशेष का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी विशेष ना हो, means it does not have any quality, no speciality, कोई quality नहीं है, right? Without quality, that is what the light is, and there is nothing other than Brahman, right? तो उनके हिसाब से क्या होता है कि भगवान क्या है, भगवान एक इम्पर्सनल लाइट है, कोई लाइट है, राइट। एंड जब उन्हें डिसेंड करना होता है, अवतार लेना होता है, तो निराकार बिकम्स, निराकार टेक्स आकार, यानी वो आकार ले लेते हैं, शरीर ले लेते हैं। शरीर कैसा, हमारी तरह, जैसे राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, ऐसे वो शरीर ले लेते हैं, राइट। एंड ही टेक्स फॉर्म लाइक आवर फॉर्म, ओके। एंड इसके बाद जैसे हम जड़ तत्व से बने हैं, पंचभूत से बने हैं, वो भी पंचभूत से बने हैं, और जैसे हम मर जाते हैं वो भी मर जाते हैं, राइट। सो ही सेज hence the lord form is also made of जड़ तत्व। जैसे कई फिलोसोफर बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण को पैर में एक तीर लगा था and he went back, right? So that is the understanding they have it, right? जैसे तो वो क्या कहते हैं कि they actually do not believe in the eternality of the soul, मतलब इटर्नल नहीं है सोल। ये कहता है सोल सनातन नहीं है, सोल आई थी चली गई, खत्म, ब्रह्मन से आई थी, ब्रह्मन में मर चुकी, राइट। They don't believe that God is totally spiritual also. Actually God is totally spiritual, he does not have anything material, but यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आकार लेते हैं मटेरियल बॉडी का, फिर वो छोड़ देते हैं, right? So they believe, and even they read scriptures also, they read Bhagavad Gita, they read Srimad Bhagavatam also, and they say that aham sarveshu bhuteshu bhutamavasthita sada, means supreme is present in every living entity। ये भी मानते हैं, लेकिन in the form of Brahman। Now according to them God is impersonal, nirakar, nirvishesh, he does not have any form, he is not a person, he is just a light, that is what they say। तो भाई ये सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये फिलॉसफी आई कहाँ से। अब आदि शंकराचार्य को तो आप जानते हो, he is not a small person, right? He is the rupa of Shankar himself। Then why this philosophy came? So let's understand that. So there is a shlok that comes in Padam Puran, and that says Mayavadam asat sastram prachannam buddham uchcher mayeva vihinam devi kalo brahma रूपनाम। So ये जो philosophy है, all these philosophy that are there, these are kind of atheistic philosophy। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तो एक बार भगवान यहाँ पे शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मायावादम असत शास्त्रम, यानी कि असत शास्त्र है, ये गलत है शास्त्र। खुद कौन बता रहा है, भगवान शंकर जी किसको बता रहे हैं, पार्वती जी, राइट। ओ गॉडेस, हे पार्वती, हे देवी, इन द एज ऑफ कलियुग में आई विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा, मैं एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, एंड दैट ब्राह्मण इज नो अदर देन आदि शंकराचार्य, ठीक है। टू प्रीच द फॉल्स डॉक्ट्रिन ऑफ मायावाद, मतलब मैं गलत पढ़ाने आऊंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं आई विल कम टू टेल द फॉल्स डॉक्ट्रिन ऑफ मायावाद व्हिच इज सिंपली कवर्ड बुद्धिज्म।
भगवान ऐसा क्यों करेंगे? क्वेश्चन आता है ना, why will the God do this, right? So सही रास्ता बनाने की हाँ, तो अभी देखेंगे क्यों करेंगे। सो प्रच्छन्नम, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, यानी कि उनको पता है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बुद्धिज्म रहेगा, उसको हटाने के लिए आएंगे। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी है क्या? बुद्धिस्ट फिलोसफी इज डायरेक्टली एन एथिस्टिक फिलोसफी। जो लोग बुद्धिज्म जानते हैं उनको पता होगा कि दे डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लाइक जैन धर्म। जो जैन धर्म होता है ना, they also don't accept the existence of God, and if you do not accept an existence of God, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो बुद्धिज्म को इसीलिए इट इज कॉल्ड कवर्ड एथिज्म। भाई आजकल जो मॉडर्न फिलोसफी में एथिज्म बोलते हैं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन तो कोई होगा मैं बोलेगा मैं तो बुद्ध धर्म को मानता हूँ, बट एक्चुअली में बुद्ध धर्म इज ऑल्सो ए कवर्ड एथिज्म, and Mayavad is a covered Buddhism. Sorry, covered Buddhism, which means covered atheism. एक तरह से मायावाद भी एथिज्म ही है, right? So it looks like a nice philosophy, right? लेकिन जब आप अनकवर करोगे ना, so the question comes, why did this happen? So history is like this कि भगवान शंकर को वेदास की फिलोसफी रिस्टोर करनी थी। तो हुआ क्या कि जब कलयुग आया ना, कलयुग का अंत हो रहा था ना, तो कलयुग के अंत में ब्राह्मणा, बिकॉज देयर वाज नॉट प्योर ब्राह्मणा स्टार्टेड कंटिन्यू एनिमल किलिंग, राइट? एंड दे डिड नॉट यूज्ड टू डू द थिंग्स इन अ राइट वे। वो सही तरीके से वो नहीं करते थे कि कौन से मंत्र से जो एनिमल किलिंग करनी है, उनका बलि कैसे देनी है, या उनको कैसे ऑफर करना है एंड ऑल। सो फॉर द टेस्ट ऑफ देयर टंग, अपनी जीभ के स्वाद के लिए they started continuing that practice and they started doing more animal killing, बहुत जानवर मारने लगे। and then slowly what happened is कि all of the place the sinful things has increased। तो फिर भगवान came in the form of Buddha, and भगवान ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने कहा कि why are you doing this? तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, but without understanding they are doing it, it was landing into sinful realm। तो बुद्ध ने बोला no shastra, all these are wrong things, don't follow them, all Vedas are waste of time, all Vedas are false, please do not pursue them, they're all false। so slowly people move towards Buddhism। तभी आप इंडिया के आसपास देखो, बहुत सारी कंट्रीज में, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारी जगह बुद्धिज्म फैला हुआ है। that was the spirit of Buddhism, okay? but उसके बाद क्या हुआ, people started become शून्यवादी कि भाई अब we will merge into the शून्य, right? and they so to stop this, they Lord incarnated as Buddha, and then after that what happened is Lord wanted to establish again that people should come back to me, but they have lost everything, they are just thinking they will become शून्य। so अभी कैसे वापस लाएंगे, एक बार में तो आ नहीं सकते। then he gave a responsibility and Lord thought कि let's first establish the authority of Vedas back, ये सब कुछ वेदा की तरफ लेके आते हैं। then Lord शंकर जी ने क्या किया कि he said I will go and I will preach everybody which is a false doctrine कि देखो तुम शून्य नहीं हो, भगवान है लेकिन वो एक ब्राह्मण के फॉर्म में है, मैं ऐसा बताऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि नहीं। तो जो बुद्धिज्म होता है, बुद्धिज्म में वो शास्त्र पढ़ के वो शून्य समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, उसी को लेके हम लोग क्या समझेंगे कि ये ब्राह्मण है और भगवान है और तुम लोग सारे भगवान में जाके मिलोगे। that knowledge I will spread। तो शंकराचार्य came and he spread this knowledge in that way, right? so and he was so amazing that within few very short span of time, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, उन्होंने सारी जगह मठ बना के सारे इंडियंस को ये समझा दिया कि यू आर ब्राह्मण, यू विल गो बैक टू ब्राह्मण। इट डिड नॉट गो बियॉन्ड इंडिया। तभी आप देखो ना इंडिया में ये चीज है, लेकिन बाहर अभी भी बुद्धिज्म फैला हुआ है, ज्यादातर के बुद्धिज्म ही है, राइट? सो ये दिस वाज द टूल। सो शून्यवादी से वो कहां पे आए? मायावाद में। और इसके बाद इफ यू सी, आज से अब अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो उसमें भक्ति काल था सन 1500 के आसपास। एंड देन लॉर्ड केम, माधवाचार्य केम टू एस्टेब्लिश कि
कि भाई अभी लोग वेदा को मानने लगे हैं, वेदा की अथॉरिटी मानने लगे हैं, लेट मी टेक दैट टू एग्जैक्ट राइट थिंग व्हिच इज दैट यू आर डिफरेंट, गॉड इज डिफरेंट एंड यू आर ए सर्वेंट ऑफ दैट. एंड देन भक्ति काल केम, देन भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम माधवाचार्य, Chaitanya Mahaprabhu also. Lot of people came, right? So Adi Shankaracharya said कि you understand Shunyavad, you try to reach Shunyavad through scriptures, through Vedas. But I will tell you the right knowledge कि जो वेदा में लिखा हुआ है वही सही है, और उससे हम ब्रह्मन की तरफ कैसे जा सकते हैं. So he spread this Brahmavad, right? So people from many places came and they listened. तो अगर आप देखो तो the thing that I told you, 400 BC Buddha came and he spread the Shunyavas which rejected the existence of creator, जो भगवान को मानते ही नहीं थे. पर्पस क्या था उनका? पर्पस क्या था कि एनिमल किलिंग को रोकना है मुझे. फिर इसके बाद 8वीं सेंचुरी में शंकराचार्य आए और उन्होंने क्या फैलाया? मायावाद. दैट वाज अद्वैत फिलॉसफी. अद्वैत फिलॉसफी पर्पस क्या था कि चलो वेदा को आप लोग भूल गए हो, क्योंकि बुद्ध ने बोला था वेद बेकार है, वेदों पे मत जाओ, ताकि किसी तरह तो एनिमल किलिंग रुके. और इसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि वेद सही है. दैट बिकेम मायावाद, राइट? सो दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म. कुछ तो वेदों की तरफ आए लोग. एंड देन इन 12th century who came? Madhvacharya, who spread the bhakti movement which is Dvaita philosophy, revival in the faith of Vishnu as Vedas, right? So अब अभी जैसे आप बहुत सारे इंडिया में अखाड़े वगैरह भी देखोगे ना, if you listen to their theory and knowledge, they will tell about this thing, they will understand Krishna, Ram, all that, but slowly after some time they will reach towards Brahman. That's it. While Vaishnavacharya tells Brahman is not wrong, Brahman is there, but it is just effulgence of the God. ये भगवान का क्या है? ये भगवान का सिर्फ और सिर्फ, ये भगवान का सिर्फ तेज है. This is only the effulgence of God. So Brahman is not wrong, but it is an incomplete understanding, right? और अगर आप किसी से रोड पे भी जाते पूछोगे ना भगवान कौन है, कुछ तो है, कोई लाइट है, कोई साउंड है. They do not have any conception of God, any conception of God. एक बार प्रभुपाद ने ना, प्रभुपाद was sitting in a class and then somebody came, his name was चतुर्वेदी. तो चतुर्वेदी कौन होते थे? जिन्हें चारों वेदों का नॉलेज होता था. So he came and he sat there, and that person Chaturvedi was having all the knowledge of the world. सारा ज्ञान था उसको, चतुर्वेदी जी को. अगर आप बोलो तो सारे श्लोका, he was very deep knowledge of शास्त्रास. But after some time प्रभुपाद realized कि इसको ये नहीं पता कि भगवान कौन है साहब. तो उन्होंने सीधा सा क्वेश्चन पूछा, चतुर्वेदी जी, can you tell me what is the conception of God? Chaturvedi ji started telling this, that, this. He says, hold on, I think you do not know, let me tell you कि भगवान कौन है. तो एक छोटा सा बच्चा वहां पे घूम रहा था किसी डिवोटी का. प्रभुपाद ने बोला इधर आओ. बच्चा आ गया. प्रभुपाद ने अपने हाथ में एक लड्डू लिया और बच्चे को, लड्डू खाओगे? बोला हाँ. प्रभुपाद ने ऐसे छिपा लिया. बोला दूंगा नहीं, पहले एक सवाल का जवाब दो. बोले व्हाट? बेटे बोले हु इज गॉड, व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गॉड? बच्चा बोला Krishna is the supreme personality of Godhead. Simple. And he gave laddu. तो उन्होंने चतुर्वेदी को बोला, see, you are running behind the bush, you don't know the answer, but answer is very simple. Krishna is the supreme personality of Godhead. So the point to understand is this: God is a person, God has a form, God is not impersonal, right? और ये मैं theoretical नहीं बोल रहा हूँ, अभी इसमें और बात करेंगे. So, इसके बाद जब भक्ति काल आया तो आपने देखा कि नॉर्थ में नरसिंह मेहता आए, वेस्टर्न में मीराबाई, सुना है आपने, ईस्ट में शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोवर्स भी थे, राइट? और संत तुकाराम हुए, बहुत सारे लोग हुए, लॉट ऑफ पीपल, पुरंदर दास, कनक दास. साउथ में भी माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मैनी पीपल केम, एंड ऑल ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास टू टेल नो, वी आर डिफरेंट, गॉड इज डिफरेंट एंड वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, राइट? दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. So at this time, all Bhakta came to tell that Mayavad was done. So even Mayavad was done for a reason, to establish the authority of Vedas, right? So people feel that Vedanta means Advaitvad, Adi Shankaracharya, but there is also Vaishnava Vedanta, जो बहुत सारे वैष्णव आचार्यों ने दिया है, जैसे कि माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, बहुत सारे हुए, राइट? सो इवन शंकराचार्य का एक भाष्य है,
एक कमेंट्री है जिसको कहते हैं शारीरिक भाष्य, अगर आपको पता हो तो। सो शंकराचार्य गेव ए भाष्य कॉल शारीरिक भाष्य। सो ऑल द मठ, जितने मठ बने हुए हैं ना शंकराचार्य के, वो सारे वो शारीरिक भाष्य को पढ़ते हैं। बट मायावाद असत शास्त्र, दैट इज व्हाट इज ट्रू, राइट। और वैष्णव वेदांत क्या बोलता है, अगर आप भगवत गीता का 15 चैप्टर का 15 श्लोक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है क्लियरली, वैदेश्च सर्वेर अहम एव वैद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम। सारे वेदों को जानने के लिए मैं ही हूँ, सारे वेद पढ़ने के बाद तुम्हें मुझे ही जानना है। इफ यू डू नॉट नो मी देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग वेदास। दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज। इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन सी चैप्टर 15 श्लोक 15 लाइन नंबर 2, इट इज रिटन देयर, राइट। सो मायावाद वाज ए फॉल्स डॉक्ट्राइन, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, आपको कोई मिलेगा बोलेगा जीव तो एक है विद गॉड, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द माया द सोल हैज फॉरगॉटन दैट ही इज गॉड। तो उसको आप ये पूछ सकते हो कि इफ देयर इज ओनली वन ब्राह्मण, ये माया कहां से आई? अगर ब्राह्मण अकेला था, मान लेते हैं मायावाद करेक्ट है, तो फिर ब्राह्मण कहां से आया, राइट। सो ये अद्वैत अभी आई एम गिविंग यू सम रेफुटेशन मींस आई एम ब्रेकिंग द मायावाद कॉन्सेप्ट, राइट। अगर ब्राह्मण अनचेंजेबल है तो हाउ कैन ही चेंज सो मेनी जीवास? अगर हम खुद भगवान हैं तो हम माया के चक्कर में आ कैसे गए? हमको तो माया के चक्कर में नहीं आना चाहिए, भगवान तो माया के जाल में नहीं फंसते ना। अगर हम भगवान हैं तो इसका मतलब कि हम भगवान है नहीं, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम, राइट। और अगर हम गॉड हैं देन माया तो हमसे स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। माया कैसे हमारे स्ट्रांग में आ गई? क्योंकि भगवान कहते हैं 9 चैप्टर में अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एंड एक श्लोक में ये भी बोलते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति सुविते साजनत्रम। इस प्रकृति का माया अध्यक्षेण प्रकृति ये मेरे अंडर में चल रही है। तो फिर हम अगर भगवान है तो हम कैसे आ गए माया के चक्कर में? वी कैन नॉट कम, राइट। सो ये हमें समझना पड़ेगा। और फिर वो बोलते हैं कि जीव जो है वो भगवान में मर्ज हो जाता है, राइट। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण तो निर्गुण है, वो लोग खुद ही बोलते हैं ना कि ब्राह्मण तो निर्गुण है। तो अगर ब्राह्मण निर्गुण है, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वो आनंद कैसे दे सकता है? अगर मैं आपको कुछ खिलाऊं जिसका कोई टेस्ट ही ना हो, तो हाउ विल यू फील ब्लेस्ड? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। जैसे कि इसमें एग्जांपल जो दिया है वो शुगर का है, राइट। इफ यू विश टू टेस्ट शुगर, तो शुगर और स्वीटनेस जो है ना वो it is a separate thing. This is all Vedantic philosophy. This is all Vedantic philosophy. Mayavad gives the logic. And beautiful thing ये है कि मायावादी also refers to scriptures. ऐसा नहीं कि scriptures रेफर नहीं करते, पूरा स्क्रिप्चर रेफर करते हैं। शंकराचार्य ने सारे के सारे स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन किया हुआ है। But to prove that we are Brahman, everybody is God, right? And method of attaining Brahman is through meditation and ज्ञान, है ना। बट जो मेडिटेशन है और जो ज्ञान है और जो अज्ञान है, they are both माया अगेन, that is completely false, right? फिर वो बोलते हैं, अगला आर्गुमेंट ये होता है उनका कि गॉड इम्पर्सनल लाइट है, भगवान एक लाइट है, ठीक है। एंड भगवान जब इधर आते हैं तो आकार ले लेते हैं, निराकार टेक्स आकार, दैट इज देयर दे टेक्स, राइट। तो सिर्फ तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसमें ब्रह्मा जी क्लियर बताते हैं कि गोविंद इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम गॉड हेड एंड ही इज इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, दैट इज प्रूवन written in the shastra. He is the origin of all. अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। आदि का मतलब from infinite previous time, immortal time. अनादिर आदिर गोविंदा, पहले से भी है, अब भी है, हमेशा भी रहने वाले हैं। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। हम भी वैसी हैं, हम भी अनादिर आदिर हैं, लेकिन हम सर्व कारण कारणम नहीं हैं। आप समझो इस बात को। There is a difference between Krishna and us. क्योंकि इस श्लोक में क्या बोला है, नत्वहम जातुनासम नौतम जेमे जनाधिपात, यानी कि आप भी पहले थे, हम भी पहले हैं। अब आप बोलोगे अनादिर आदर गोविंदा, अनादिर आदर गोविंदा भी हैं और अनादिर आदर आप भी हो। अगर हम कहें अनादिर आदर स्वप्निल प्रभु, यस दैट इज ट्रू, बट स्वप्निल प्रभु इज नॉट द सर्व कारण। सर्व कारण के कारण नहीं है, सर्व कारण के कारण कौन है? गोविंद। एंड दैट ब्रेक्स द अद्वैत फिलॉसफी।
राइट। हम लोग थोड़ा डीप इसलिए घुस रहे हैं यहाँ से टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए कि कल को कहीं जाओगे और भगवत गीता के बारे में बात करोगे तो लोग आपको ये देंगे, अरे होना क्या है, हम तो भगवान में ही मर्ज हो जाएंगे, सब रास्ते एक तरफ ही जाते हैं। अरे आप मुंबई के ट्रेन में बैठोगे तो मुंबई पहुंचोगे, अगर आप कलकत्ता तो नहीं पहुंचोगे ना, है ना। भगवान 9 चैप्टर के 27 श्लोक में क्लियरली बोलते हैं, यान्ति देवव्रता भूतानि यान्ति भूता। तो अगर भूतों की प्रे करोगे तो भूत लोक में जाओगे, देवताओं की करोगे तो देवलोक में जाओगे, पितरों की करोगे तो पितृलोक में जाओगे, मेरी करोगे तो मेरे पास आओगे। तो ये लॉजिक तो कंप्लीटली फॉल्स है। इसकी भी पूजा करो तो भी वहीं पहुंचोगे, उसकी भी पूजा करो तो वहीं पहुंचोगे, नहीं। This all does not lead to the same path. It's a wrong understanding. We have to understand. Okay. So Shri Upanishad भी बोलता है, such a person must factually know the greatest of all, the personality of Godhead, who is embodied, omniscient, beyond reproach, without veins, pure, uncontained. श्री उपनिषद बोलता है without bones. भगवान की जो बॉडी होती है ना, उसमें जो हड्डी और मांस नहीं होता है, उनकी बॉडी कंप्लीटली स्पिरिचुअल होती है। तो जो बोलते हैं ना कि निराकार थे आकार ले लिया हमारी तरह, नहीं, आकार नहीं लिया है। He also comes as spiritual, goes also spiritual, because all the time he is spiritual only, right? So that is what we have to understand. So no shastra support this logic. Okay, that is what we have to understand. Now next thing is supreme personality of Godhead lives, is present in every living entity. We have discussed much of this. अगला उनका लॉजिक होता है कि एवरीथिंग इज इल्यूजन, सब कुछ माया है। हम भी तो ये बोलते हैं सब कुछ माया है, लेकिन वो बोलते हैं सब कुछ असत है, रियल नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये रियल है, आप देख सकते हो अपने आप को, मैं आपको देख सकता हूँ, ये लैपटॉप रखा हुआ है। तो वेदांत रियल नॉलेज क्या है कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन टेम्परेरी है, ये आज है कल नहीं रहे। दिस इज रनिंग ऑन द स्केल ऑफ टाइम, ये टाइम पे चल रहा है। लेकिन जो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। पता है हम सब पे जो हमको मृत्यु भी हमारी क्यों होती है? हमारी मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि हम काल के बाउंड में हैं, समय के साथ चल रहे हैं। अगर समय रुक जाएगा तो हमारी मृत्यु भी रुक सकती है। If you can hold the time, the death will not be there. But the time is the time that is created as a dimension. अगर आप साइंस पढ़ोगे, क्वांटम साइंस पढ़ोगे, क्वांटम साइंस और ओके, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें 2D होता है, 3D होता है। हम लोग किस वर्ल्ड में रह रहे हैं? 3D में। लेकिन एक्चुअली में स्पेस कितने डायमेंशंस पे है? साइंस बोलती है 9 डायमेंशंस तक जाता है, शास्त्र कहते हैं 64 डायमेंशंस है। इट इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ योर इमेजिनेशन। आपकी कल्पना से परे है कि ये कितने डायमेंशन में फैला हुआ है। सो ये जो हम कहते हैं ना कि सब कुछ इल्यूजन है, राइट? दैट इज नॉट द राइट। सब कुछ इल्यूजन है, बट think it this way, it is there, real but temporary. So world of cosmic manifestation is not false, right? एक श्लोक आता है भगवत गीता के 8 चैप्टर के 19th प्लेस में, भूत ग्राम स एवं भूत भूत्वा प्रलीयते रात्रि आग में विनश पार्थ प्रहलति हर आग में। मींस के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी की रात होती है, और जब उनके 100 वर्ष हो जाते हैं तो उस यूनिवर्स का प्रलय होता है और वापस से ये वापस आता है। और जब हमने अपना वो पढ़ा था, जो चार्ट देखा था, उसमें देखा था ना, जो महाविष्णु है उनके रोम से मल्टीपल यूनिवर्स निकल रहे हैं। तो कब निकलते हैं? जब वो ब्रीदिंग करते हैं। उनकी एक ब्रीदिंग ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष में जो एक दिन होता है, उसमें एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, और जो एक महायुग होता है वो 4 युग मिला के होते हैं, और जो 4 युग होते हैं उसमें हम एक युग में अभी रह रहे हैं, उस किसी 1000 महायुग के किसी एक में। Now think about the dimension we are talking. This is the dimension we are playing. So भगवान ने जो टाइम का डायमेंशन भी दिया है ना, उनके लिए वो कुछ नहीं है। बट अगर हम अपने आप को रख के देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, we are insignificant. We don't fall anywhere at all. हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और उसी एग्जिस्टेंस में हम काम क्रोध लोभ मोह लेके भी बैठे हैं, तू तेरा मैं मेरा, वो ऐसा है ये ऐसा है ना। So we have to understand what we are talking, what scale we are talking. We will see the time dimension more on to 4th chapter, 1st shloka, 2nd shloka, where I will also talk about quantum theory and time dilation. मगर आपको इतना बता देता हूँ कि आपको ये चीज प्रूव हो जाएगी कि अगर आप बहुत सारे वीडियोस में भी साइंस ने प्रूव किया है कि जिस हिसाब से टाइम अभी यहाँ चलता है ना, मून पे अलग चलता है, स्पेस में अलग चलता है। तो आप ये मानोगे कि यहाँ पे एक दिन जो होता है, जो 6 महीने होते हैं, स्वर्ग में वो एक दिन होता है।
स्वर्ग का एक दिन यहाँ के 6 महीने के बराबर होते हैं। अगर आप गलती से स्वर्ग चले गए और नीचे आ गए तो 6 महीने निकल गए होंगे। कोई बच्चा 4 महीने पहले फाइनल एग्जाम के पहले स्वर्ग चला गया और वापस आ गया तो उसका एग्जाम का डेट अगले दिन ही होगा, तो उसको लगेगा एक ही दिन तो निकला है। नहीं, द टाइम डायमेंशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोका, डिफरेंट प्लैनेट, different cosmic manifestations, planetary things. Okay, so there are more refutations here, which is so हमको पता है कि ये individual soul is separated or broken from original consciousness is covering by Maya illusion. So हमने अभी देखा कि soul is, अभी हम आगे भी देखेंगे कई जगह कि अलग-अलग जगह पे भगवान इस मायावाद को ब्रेक करते हैं। ये मायावादी थ्योरी जो है it is broken into multiple other places. Okay. Okay, so I wanted to continue 10 more minutes. Is it good to continue or we should? We have 10 more minutes so that I'll finish this verse. I think verse रह जाएगा. Yes. Okay. Okay, fine. So चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबने सुना है, right? चैतन्य महाप्रभु का सुना है. So when चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था ना, तो वो सारी जगह गए थे. तो एक बार ना वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी से वृंदावन, और वृंदावन जा रहे थे तो एक्चुअली वो एक जगह पे रुके और वो क्या करते थे, हरि नाम का संकीर्तन करते थे। He was usually doing हरि नाम संकीर्तन all the time. That is called congregational chanting of हरि name. So जब वो सब जगह जाते थे तो वो यही करते थे। तो वो बीच में एक जगह पहुंचे जिसका नाम था काशी। काशी मीन्स वाराणसी, और वाराणसी हैपेंड टू बी द हेडक्वार्टर ऑफ मायावादी। वो मायावादी इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर मतलब वहां पे बहुत सारे फिलोसोफर थे जो सब मायावादी थे, है ना। बहुत सारे इंडिया में साधु महात्मा भी मायावादी हैं। जब तक आपसे जब ठीक है ना, अगर आपको कभी भी पहचानना है ना तो आप सीधे पूछो व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गॉड फॉर यू एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ द लाइफ। इफ दे आर एबल टू टेल द पर्पस ऑफ लाइफ इज गो बैक टू गॉड एंड सर्व द लॉर्ड, देन ही हैज अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। इफ ही सेज मर्ज हो जाएंगे किसी लाइट में, किसी ब्रह्मन में, ही इज अ मायावादी। We have to be, and मायावादम असम शास्त्र, असत शास्त्र, बहुत ध्यान रखना है आपको, right? So he reached to that place and हुआ क्या कि वहां पे जब वो वापस पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे मायावादी थे और उन्होंने बोला कि अरे ये सन्यासी नहीं हो सकते हैं, दिस पर्सन कैन नॉट बी सन्यासी, ही इज सम ढोंगी बाबा, ही इज सम फॉल्स पर्सन। बिकॉज सन्यासी जो होता है, सन्यासी का काम क्या होता है, वेदांत पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, और ये सब नाचो गाओ नहीं, ये सब भक्ति ये सब भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, भजन कीर्तन की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट मायावादी यूज्ड टू से। सो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबॉडी, ही वेंट टू वृंदावन। एंड जब चैतन्य महाप्रभु केम बैक, ही अगेन स्टेड बैक एट काशी। सो जब वो काशी में रुके, ही अगेन केम बैक, तो वहां पे उनके एक डिसाइपल थे और उन्होंने उनको प्रसाद के लिए बुलाया। सो इवन दो मायावादी चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट गो टू एनी Mayavadi philosophy people and talk, but he thought कि who will give them the right knowledge, let me go and talk to them. So he went there for the dinner and वो जो disciple थे उन्होंने बाकी मायावादी philosopher को भी बुलाया था। तो उनमें से जो उनके हेड थे उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। ओके, तो महाप्रभु गए एंड जहाँ पे घर था, घर के बाहर हाथ धोने की जगह थी, वहां जाके वो humbly बैठ गए, taking a lower position by being very humble. That is a Vaishnava. He taught the first lesson how to humbly go somewhere. And when he sat there, then he knew that everybody inside is a Mayavadi philosophy, because he was Lord himself. So he sat there, and then he was having a lot of age. So because he was God, he started showing his effulgence, Brahman. And that is the same Brahman जिसके पीछे मायावादी हमेशा पड़े रहते हैं। तो उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत ब्राइट सन्यासी है कोई, somebody is there. So प्रकाशानंद सरस्वती went there and महाप्रभु का हाथ पकड़ के he said अरे हम भी सन्यासी हैं, आप भी सन्यासी हो, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप चलो मेरे साथ। तो उन्होंने उनको लिया और वो अंदर सभा में उनको ले गए। And just because is a small act of उनका हाथ पकड़ के वो अंदर ले गए, उनको मुक्ति मिल गई। Even though he was मायावादी, भगवान का थोड़ा सा भी सेवा करोगे इग्नोरेंस में भी तो मिल जाएगी। And then he said कि उन्होंने उनको बिठाया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठिए, आप तो सन्यासी, हम भी सन्यासी। बोले हाँ। फिर उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू शंकरा स्कूल ऑफ फिलोसफी, आपके जो गुरु हैं, जो भारती जी आपके गुरु हैं, वो भी शंकर फिलोसफी से, हमारे भी हैं। और शंकर फिलोसफी में क्या होता है कि सन्यासी शुड नॉट बी डूइंग चैंटिंग एंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट।
ऐसे नाम लेके, भगवान का नाम लेके ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, राइट। हमारा क्या है, तपस्या करना। तपस्या कैसी, ज्ञान लो और उसको उसको समझो और उस पर अध्ययन करो, उस पर मेडिटेट करो। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ ए सन्यासी इज, राइट। सो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ये हमारा काम है, इसके आगे मत जाओ, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे बस का नहीं है वेद समझना, यू आर जस्ट ए फूल। उन्होंने बोला कि यू आर जस्ट ए फूल, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एंड यू टेक लॉर्ड्स नेम। सो उन्होंने बोला है कि प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहर कारण गुरु मोरे मूर्ख देही करीला शासन। यानी गुरु ने मुझे मूर्ख समझा और मुझे बोला कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है वेद पुराण समझना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, उनके गुरु ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को हम्बल प्रेजेंट कह रहे हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देही करीला शासन। एंड आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं मूर्ख तुम्ही तोमार नहीं वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। आई एम गिविंग यू वन मंत्र, तुम कृष्ण जपो, यू डोंट हैव एनी एलिजिबिलिटी टू डू एनीथिंग एट ऑल। दैट इज व्हाट हु सेड, चैतन्य महाप्रभु। टू whom? To Prakashana Saraswati, right? So it is, so what does it mean? What does it mean? उनके गुरु ने क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने क्या बताया? It is not possible to attain the perfection of life simply by dry gyan, simply by studying Vedanta, Upanishad and everything. The Kalyug dharma is to chant the holy name. नाम जब सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बोलता हूँ ना ABCD करो, क्यों करो, इसीलिए, राइट। एंड देन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, because he was willing to accept his humble position, he explained this, right. And then one by one Chaitanya Mahaprabhu tried to explain everything to Prakashana Saraswati and everything, and shows his real form there with his effulgence, and he converted all the Mayavadis into Bhakta. It was the need of the time. It was the need of that time, right. So not only Chaitanya Mahaprabhu, many people refuted, and then there's another people called Sanatan Goswami and Rupa Goswami, right. They were the ministers in the kingdom of Nawab Hussain, Nawab of Bengal. मैंने स्टोरी सुनाई थी पहले आपको, राइट, याद है किसी को, है ना। So they were originally the member of Saraswat Brahman family of Karnataka many generation before, but उनके बहुत सारे लोग बंगाल में आके बस गए थे, so they became employed in the service of Nawab, and because they were serving so closely to this Nawab, they became like Muslim, and they had many Vedic शास्त्र। और जब चैतन्य महाप्रभु इनके पास आए, तो सनातन गोस्वामी actually came to him in a very humble form, and humble form क्या पता है क्या था, what was the humble form? He straight came and did a dandavat to him, and he said, Mahaprabhu, I know many languages, people in my village think that I am a very learned person, मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ। People in my village think I am a very ज्ञानी person, people in my village think that I have lot of knowledge, and the interesting part is this, I believe it is true. The interesting part is this, ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैं सोचता हूँ वो सही है। कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, किसको बोल रहे हैं, महाप्रभु को। लेकिन मुझे पता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया और मेरा पर्पस क्या है। And he went with a grass of blade in his mouth. जैसे गाय होती है ना, गाय जब अपने मुंह में घास का टुकड़ा लेके किसी के पास जाती है ना, दैट इज, शास्त्र कहते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, सरेंडर। तो चैतन्य महाप्रभु also took something similar and he went in front of Chaitanya Mahaprabhu. Sanatan Goswami also took something similar in the mouth, मुंह में कुछ लेके वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास, and he talked like this. That is a symbol of humility. And then Chaitanya Mahaprabhu gave him all the knowledge that what is right and what is wrong, what is the knowledge and what is not. So बहुत सारी चीजें हैं। तभी तो अगर आप देखो, अर्जुन ने भी जब भगवत गीता के चैप्टर 2 के सेकंड श्लोक में पहली लाइन में बोला कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, he realized कि I am the biggest fool, I am the biggest fool,
अगर आप गुरु के पास जाते हो ना ज्ञान लेने और आपको लगता है ना कि मुझे तो पता है, तो आप कभी उसको समझ ही नहीं पाओगे। When you go to a guru, you have to accept you are a fool number one, and then only you can listen all the knowledge of the world. At the moment you think ये तो पहली बार भी सुना थे तो अगली बार भी सुनेंगे, हर बार वही बात बोलते हैं, you are soul, you are soul, you are soul, और नई बात समझ में नहीं आती है, then you will not learn. प्रभुपाद के पास जाना है, प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, तो हमें ये समझना है कि whatever प्रभुपाद is saying, there is a real substance behind it. बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? और अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, तो क्या आप समझ गए कि हम सोल हैं? And do we behave like a soul? We don't behave like a soul. Every moment we keep forgetting, we are not able to behave like a soul. और बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा. So तभी तो यहाँ पे कहते हैं गता सुम अगता सुमश्च. गता means which is gone, अगता means which is not gone. नानु सोचन्ति पंडिता. जो चला गया है और जो नहीं गया है, आपको दोनों के लिए लेमेंट नहीं करना. You don't have to lament. That is what Krishna, Nanu Sochanti Pandita, that person do not lament. That is what is there. So Madhvacharya also was there, and then Purport is there. So I am leaving the Purport because we are much over time today. So the homework is there today. You read the Purport of 2.12 because we could not cover it, and then we will continue from here in the next class. It's a very intense sloka. And even the purport actually. Bhagavan has just started the intensity now. You think when you reach next chapter, where you all go. That's why I have sent a message purposefully in the group. If you have left something or not did something, fine. But आज के बाद रेगुलर होना है. और रेगुलर होने का मतलब क्या है? 10:45 पे आना है. एक चीज हमेशा याद रखो. जब आप सर्विस करते हो ना, तो दो चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. स्पिरिचुअली ग्रेटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट रियली टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है. सर्विस कभी बिना टाइम के नहीं होती. अगर आपको किसी को सर्व करना है, 2 बजे खाना देना है, तो आप 2 ही बजे दोगे. अगर 4 बजे दोगे तो सर्विस का कोई मतलब नहीं है. और वो मतलब इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है. तो अगर आप सर्विस ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे हो ना, तो टाइम से अपने आप फॉलो करोगे. लेकिन अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, तो आप टाइम को कभी फॉलो नहीं करोगे. तो मटेरियल और स्पिरिचुअल भी साथ साथ चलता है. तो जब आप इस क्लास में आ रहे हो ना, you come with the intensity to listen, learn and go back and apply and on time. Because अगर आप टाइम पे नहीं आते हो ना, this is not a disrespect to me, this is a disrespect to every single person जो यहाँ पे सुबह झाड़ू लगा के क्लास पहुँचाता है, जो लैपटॉप लेके आता है, जो साउंड सिस्टम अरेंज करता है, जो अटेंडेंस लेता है, जो प्रसाद बनाता है, प्रसाद लेके आता है, अभी नीचे से प्रसाद उठा के भी लाएगा ऑटो से. It is a disrespect to every single person if you do not come on time. Please understand. And from this sloka onwards, I am going to be very deep, serious and regular. I request everybody to be same on the same note. Services आपको मिलती हैं, please attend, ensure that you are doing every service, you understand the service and you acknowledge the service also. दीपक प्रभु जब सर्विस भेजते हैं, उसमें एक छोटा सा लाइक कर दो ताकि उनको पता चल जाए you have read the service, you have understood the service and you are available for the service. Okay? बहुत मेहनत लगती है उनको हर बार ये तय करने के लिए कि कौन आ रहा है और उसने सर्विस कर ली है कि नहीं की. ये वाली सर्विस कर ली है तो कौन सी उनको देनी है, नहीं देनी है तो कौन सी नहीं देनी है, कौन सी वो कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं. Every week he takes 2 hours to just decide this and send you the mail and message. So please stick to it, please follow them, please help him. Okay? And be on time. Okay, so homework is please go through this and ask your questions next time. I will clarify those. And any questions from anybody, I am here. One or two questions. Okay, perfect. So since we do not have anything, we'll wrap the class. And I am here in lunch time for any questions you may have. Okay, so we'll stop here. Sorry. Yeah. Probably just a request. We'll finish this and we'll continue. No, we have to have regular classes. Means हम लोग का बहुत. We will have them. We have to. Oh, sure. वाचा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वंदे शीला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. About